Hi, good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Okay. And how many students are there in total? Sir, 15 total. I mean, in your online group, how much are we expecting here? Think 15. So I guess two more students are remaining, right? Yes, sir. If you guys can let them know to quickly join in. Okay. We'll start in next 2 minutes. Okay. Brother, first tell me, am I clearly audible? Yes, sir. Okay. No noise yes, sir. background, right? Is there any background noise from my end? Yes, No, sir. sir. Okay. Okay, fine. We'll so first of all, I'll introduce myself. I guess some of you might know me because that day I was present in the demo meeting. So this is Suraj Nayak. I'm the project manager and co-founder working in Code Vortex, and I am like working on many Python related projects, machine learning projects, agentic projects, AI projects. So I do handle those kind of things in my company. And also, you can see Rishabh Tripathi named person in this meeting. So he is also a Python developer out in Code Vortex. He'll be mostly taking out your classes. Okay. And secondly, tell me which language you guys are comfortable with. Like, is it full English? Is it full Hindi or a mix of both? कैसा चाहिए? क्या चाहिए? Let me know. Okay. A mix of both. Yes, Okay. sir. Both. Okay. Fine. ऐसा बहुत चलेगा सर. चलेगा ठीक है. Okay. So mostly Rishabh will take the charge of training you guys. I'll be also there in the meeting in case you guys encounter any kind of doubts, any problems, anything. Just feel free to ask me or Rishabh. We are both are there to help you out. Okay. And I came to know that most of you guys are from first year, right? Yes. Yes, sir. Are there like second year as well? Two, sir. Two. Yeah, like that day I came to know Sneha. I guess she's from second year, and one more one more who is from second year. And me, Chandni Okay. Kumar. Chandni. So you guys are mostly for AIML thing. So Python will be a fresher for, I mean, refresher thing for you. So guys revise the Python stuff that will be used in machine learning later on. Okay. Okay, sir. Okay, fine.
And from which college you guys are? Like you're doing BTech, BE, or like diploma? What you guys are doing? Diploma. Diploma, sir. Diploma. Okay. Diploma, first year, second year. Good. Cool. And okay then, Rishabh, you can introduce yourself as well. Then I'll start with the context. Thank you, sir. Hey everyone, I am Satyapati. I am a Python developer at CodeVertex since 2020, May 2024. Now I am your trainer here. I will teach Python you guys. So, how are you and what's going on? Good evening, sir. Okay, okay, let's start. First of, please. Okay, fine. So, guys, some requirements that I need from you guys is excitement, the attitude for learning, not the ego and one attitude. And thing is, थर्ड लो बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एंड बहुत हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल करा के तुम सभी को सिखाने वाले हैं हम लोग. सो डाउट वगैरह रहेगा, प्लीज फील फ्री टू आस्क. कुछ भी प्रॉब्लम्स है, रीच आउट टू अस, वी आर देयर टू हेल्प यू गाइस. एंड स्टे एक्साइटेड, प्लीज डोंट मेक इट अ वन साइडेड वाला थिंग बिकॉज हम बस पढ़ा रहे, तुम्हारे साइड से एफर्ट नहीं आ रहा या तुम्हारे साइड से रेस्पॉन्स नहीं आ रहा. सो डोंट मेक दैट हैपन बिकॉज इट विल बी अ बोरिंग थिंग. फिर ना हमें मजा आएगा पढ़ाने में, ना तुम लोग को पढ़ने में मजा आएगा. ओके, ठीक है जैसा नहीं. Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes, sir. Okay. Yes, sir. So you guys can also use the reaction वाला thing in this project. ये Google Meet में है ना, तुम लोग अपने Yes. reaction वगैरह भी बता सकते हो. Doubts वगैरह पूछना तो you can raise your hands anytime in between. Okay. Right? Perfect. Yes, sir. Perfect, Sean. Right. So tell me, any one of you can tell me like what context do you have related to programming या फिर why you should do programming या फिर anything related to programming. Python पे हम थोड़ा लेटली आएंगे, बट लेट मी नो बाय एनी कॉन्टेक्स्ट प्रोग्रामिंग वर्ड सुन के तुम्हारे माइंड में क्या आता है या फिर प्रोग्रामिंग को तुम लोगों ने क्या समझा है. बट एज फार आई कैन अंडरस्टैंड, यू गाइज हैव ऑप्टेड फॉर डिप्लोमा आफ्टर 10th, राइट? और आफ्टर 12th. Guys, At 10th. आफ्टर 10th, राइट? या दैट्स ओके, यू गाइस आर लाइक प्रीटी मच, अभी बहुत छोटे हो तुम लोग. बट दैट्स व्हाई मेरे को समझना है कि तुम लोग प्रोग्रामिंग मतलब क्या समझते हो, बिकॉज पाइथन एट द एंड इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वी नो. After 10th, sir. You should be bit quick to respond. Okay, you guys can also answer in the chat box as well. कोई issue नहीं है. Yeah, ठीक है. बाकी एनी वन ऑफ यू वॉलंटरीली बताओ, मतलब तुम लोग को प्रोग्रामिंग मतलब क्या माइंड में आता है. इट इज ओके अगर तुम लोग गलत आंसर भी दे रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नो वन इज गोइंग टू जज यू. अगर गलत है भी तो हम करेक्ट कर देंगे, कोई इशू नहीं. ओके. सर, कंप्यूटर में कोई भी टास्क को परफॉर्म कराना हो. Okay, that could be one of the answer. Anyone else? Sir, communication between computer and human. Okay, very good. Anyone else? Is someone saying? Yeah, can say. I got two answers. Like one was कि कंप्यूटर से बात करने के लिए या फिर ह्यूमंस और कंप्यूटर्स के बीच में का इंटरेक्शन के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं. ओके, एनीवन एल्स? वन लास्ट चांस. ओके, नो इश्यूज. फाइन. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली, जैसे चांदनी ने भी सही कहा, कि इट्स अ मोड ऑफ इंटरैक्शन दैट वी यूज टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन द ह्यूमन एंड दिस और मशीन, राइट? तो अभी इसका इवॉल्वमेंट अलग अलग तरीके से रहा है. अभी हम लोग डायरेक्ट पाइथन पढ़ने वाले हैं, बट अगेन पाइथन एक डायरेक्ट लैंग्वेज मशीन को कैसे समझ में आता है, इसके अंदर बहुत सारे लेयर्स हैं.
वी हैव मशीन लेवल कोडिंग, देन असेंबली लैंग्वेज, बहुत कुछ है। एट द एंड वो 0-1 पे बात आ जाती है कि बाइनरी लैंग्वेज मशीन समझता है, तो उस पर बॉइल डाउन हो जाता है सारा चीज़, राइट। यू गाइस नो दिस थिंग, जीरोस एंड वंस में कंप्यूटर्स को समझ में आता है, राइट। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू व्हाट इज पाइथन। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बहुत सारे वैरायटी ऑफ यूज है। ये तो बेसिक है कि हम अगर मशीन से बात करेंगे तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू बात करेंगे, सिंपल। नाउ कम्स टू पाइथन, द लैंग्वेज। जैसे वी नो वाइल कम्युनिकेटिंग वी हैव हिंदी, मराठी है, देन हमारे पास तेलुगु, तमिल, बहुत सारे अलग अलग टाइप के लैंग्वेज है। सिमिलरली कंप्यूटर से बात करने के अलग अलग तरीके हैं। आई मीन C++ हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस है। हर एक लैंग्वेज का पर्पस अलग है। पर्पस अलग है कह सकते हैं, या फिर थोड़ा तरीका भी अलग है। जैसे हम नॉर्मली भी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं तब थोड़ा अलग तरीके से बात करते हैं, राइट। सिमिलरली दिस इज द थिंग, दिस इज आई एम कंसिडरिंग फ्रॉम वेरी बेसिक, एकदम बहुत नीचे से बेसिक से कवर कर रहा हूँ, सो दैट यू गाइस अंडरस्टैंड इट, कि कुछ आगे जाके क्वेश्चन मार्क ना रहे, राइट। यस, अच्छा, परफेक्ट परफेक्ट, स्नेहा, सुधांशु, ठीक है, गुड रिस्पॉन्स। तो अब हम प्रोग्रामिंग सीखने वाले हैं पाइथन में। बेसिकली पाइथन सीखेंगे। पाइथन कहाँ कहाँ यूज होता है। पाइथन एक लैंग्वेज सीखने के बाद डायरेक्टली हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमको थोड़ा और फ्रेमवर्क सीखना पड़ता है। लाइक अगर तुम्हें पाइथन लैंग्वेज आता है तो मेक अ प्रोजेक्ट यूजिंग पाइथन। तुम वेबसाइट बना सकते हो, तुम मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर बना सकते हो, राइट। तुम एआई एजेंट बना सकते हो। अब एआई एजेंट पता है किसी को क्या है? बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है मार्केट में। Anyone? No, sir. नहीं? No, sir. Oh, नो सर। No, sir. no issues. ChatGPT? चैट जीपीटी को एजेंट नहीं बोल सकते हैं, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज चैट जीपीटी समथिंग एलएलएम में होता है। अभी ये वर्ड भी शायद तुमको नया लगे, लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होता है, कैसे चलता है, बट नो नीड टू वरी। बहुत सारे टफ वर्ड्स तुम फर्स्ट टाइम सुनोगे उसको सुनकर डरना नहीं है। जैसे टेंसर फ्लो आएगा, डीप लर्निंग आएगा, CNN, ANN, अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, तो डोंट स्केयर आउट ऑफ इट। जस्ट समझो कि वो क्या होता है, फिर चीज़ें आसान हो जाएगी। अभी एजेंट पे आते हैं। एजेंट जो मैं कह रहा था, एजेंट इज समथिंग जिसको तुम काम बताओगे वो तुम्हारे लिए पूरा काम कर देगा। तो कंफ्यूजिंग लग रहा है ना, थोड़ा सा लाइक कैसे? जारविस। जारविस। एग्जैक्ट। So this thing is happening in market nowadays. I have seen various examples जहाँ पे यूजुअली तुम लोग अभी लेट सपोज कस्टमर केयर को कॉल करते हो। लेट सपोज किसी बैंक से कॉल आ गया या फिर तुम्हारा कोई सिस्टम चल नहीं रहा है, तो तुम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के कंपनी के कस्टमर केयर को कॉल करोगे, राइट। बोलोगे कि मेरा ये प्रॉब्लम आ रहा है वगैरह, एंड उधर से एक इंसान बात करेगा, राइट। सिमिलरली हैपेंस इन Amazon, फ्लिपकार्ट। अगर तुम्हारा ऑर्डर नहीं हो, इमेजिन दैट थिंग। वो जो इंसान उधर बात कर रहा था तुमसे कि सर बताओ क्या प्रॉब्लम है वगैरह, वो इंसान अब एक एजेंट से रिप्लेस हो चुका है। लाइक जब तुम कॉल करोगे तो देर इज हाई चांसेस इन सम ऑफ द कंपनी, अगर वो लोग ने एजेंट डिप्लॉय किया है, तो तुम उधर एक्चुअल इंसान से बात नहीं कर रहे हो, तुम उधर के एजेंट से बात कर रहे हो। वो एजेंट एक कंप्लीट ऑटोमेटेड रोबोट है जो इंसान की तरह ही रिप्लाई करेगा, तुम्हारे प्रॉब्लम्स को समझेगा, नोट डाउन भी करेगा, एंड इफेक्टिव सॉल्यूशंस भी देगा। इट इज हैपनिंग, अंडरस्टूड? Yes, sir. एग्जैक्टली। तो यस सर। दिस इज द ब्रॉडर आइडिया व्हाट इज एन एजेंट। तो ये ऐसी चीजें भी जो बनती है उसके लिए भी बेस पाइथन है। ये नहीं बोलूंगा कि डायरेक्ट पाइथन यूज करके एजेंट बनता है, नो। पाइथन बेस इसलिए है बिकॉज इसको बनाने के लिए जो भी चीजें लगेंगी, जैसे NLP हो गया, LLM हो गया, या चैट जीपीटी भी हो गया, या फिर ये सब जो चीजें लगती हैं उसमें पाइथन यूज होता है। जब हम कोर से कोई चीज बनाते हैं, एकदम छोटे छोटे चीजों को जोड़ के जब बनाते हैं तो उधर पाइथन यूज होता है। So this is there are various and vast use cases। जैसे इसके अपना पाइथन के तुम वेबसाइट बना सकते हो, जैसा मैंने बोला। ऑफ कोर्स फ्रंट एंड में पाइथन यूज नहीं होगा, बैक एंड में यूज होगा। उसमें भी डिटेल में आएंगे थोड़ी देर बाद या थोड़े दिनों बाद, जब तुम्हें पाइथन का बेसिक आइडिया समझ में आ जाएगा। ठीक है? और क्या मैंने बोला, मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर। अब आई वुड लाइक टू आस्क, अच्छा उससे पहले
अभी तक मैंने जो थोड़ा शॉर्ट जिस्ट दिया, यू गाइस अंडरस्टूड इट ऑल? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Sir. ओके। कमिंग टू द मशीन लर्निंग वाला थिंग, अभी तुम लोगों ने काफी सुना होगा कि एआई ऐप है, एआई टूल है, या फिर एआई कैमरा जो बीच में काफी फेमस चल रहा था रेडमी के फोन्स में, या फिर मशीन लर्निंग वेबसाइट या एआई वेबसाइट जो बोलते हैं। देख सको तुमने वेबसाइट तो बना दिया, ये जो मशीन लर्निंग का जो तुम चीजें बनाओगे वो इसमें आता कैसे, वेबसाइट में कैसे डाली जाती है? एनी आइडिया? होस्टिंग करके नॉट एग्जैक्टली, बट दैट इज ओके। गिटहब में लिंक क्रिएट करके। नहीं, मतलब मैं बोल रहा हूँ अगर तुम एक नॉर्मल सा वेबसाइट बनाओगे उसमें अगर मशीन लर्निंग के फीचर डालने हैं तो वो कैसे करोगे? एक नॉर्मल हम्म? सर, No idea, sir. कैसे? नो आइडिया। इट्स ओके, ठीक है। और कैसा होता है यूजुअली व्हेन यू मेक दिस काइंड ऑफ वेबसाइट्स, इसमें दो चीजें होती है। एक तो फ्रंट एंड होता है जहाँ पे तुम्हें सामने की चीजें दिख रही होती है, एक होता है बैक एंड जो तुम्हें डायरेक्टली दिखता नहीं, बट उसमें सारे लॉजिक लिखा रहता है कि तुम्हारा फ्रंट एंड में चीजें चलेगा कैसे, किस पे क्लिक करने में क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन सा डेटा दिखाया जाएगा क्या नहीं दिखाया जाएगा, वो सारी चीजें बैक एंड में लिखी जाती है। ये जो मशीन लर्निंग मॉडल भी है, इट इज काइंड ऑफ अ लॉजिक या फिर एक काइंड ऑफ ब्रेन बोल सकते हैं, स्पेशल फीचर बोल सकते हैं, जो हम बैक एंड में ही इंटीग्रेट करते हैं। सेपरेटली मशीन लर्निंग का मॉडल बनाया जाता है एंड काफ़ी मॉडल एग्जिस्टिंग भी रहते हैं। वो मॉडल को लेके हम बैकएंड में इंटीग्रेट करते हैं एंड फिर उसको सर्वर पे डिप्लॉय किया जाता है उस वेबसाइट पे, राइट? तब जाके वो जो मशीन लर्निंग के फीचर तुम लोगों ने बनाए हैं तब वो चीज़ें एक्सेसिबल हो पाती है, अनटिल अनलेस नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक यूज केस है। देयर आर मल्टीपल टू बी ऑनेस्ट, एंड टॉकिंग अबाउट द जॉब्स एंड पे स्केल वगैरह थिंग बहुत हाई है अगर तुम्हें अच्छे से ये चीज़ें आती हैं तो। पाइथन आता है, उसके बाद तुम ये मशीन लर्निंग कर सकते हो, अगर इन डिटेल चीज़ें आती है, मॉडल्स बना सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, यू कैन रियली कैनॉट इमेजिन कि तुम कितना कमा सकते हो, टू बी ऑनेस्ट। देर आर कंपनीज पेइंग 40 लाख 50 lakhs पर एनम एज अ फ्रेशर को सैलरी सीटीसी देती है। देर आर मल्टीनेशनल कंपनीज। थ्रू आउट द ट्रेनिंग मैं तुम्हें उस बारे में भी थोड़ा गाइड करूंगा, हाउ यू गाइज कैन बी स्किल अप फॉर दोज कंपनीज, या क्या चीज़ें लगती है जॉब इंटरव्यू के टाइम वगैरह भी। तो आई विल बी गाइडिंग ऑन दैट थिंग एज वेल। ओके, यस। एंड एक और चीज़, जैसा इंटरव्यू प्रोसेस या फिर जो स्किल एक्सपेक्टेशन आज से 2 3 4 साल पहले था, ऑफ कोर्स अभी वैसा नहीं है, एंड 2 या 3 साल बाद वैसा नहीं रहेगा। यू गाइस बीइंग इन टेक, अगर तुम्हें लाइफ टाइम टेक में रहना है, एक एटीट्यूड तुम्हें रखना पड़ेगा, एवरी टाइम यू हैव टू बी अ लर्नर। तुम्हें चीज़ें सीखती रहनी पड़ेगी। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट। So you guys got an idea about it, right? पाइथन के कितने यूज केसेस हो सकते हैं वगैरह, ऑल दोस थिंग्स क्लियर है? ब्रॉडर पिक्चर क्लियर है? ठीक है। एंड दिस कंप्लीट ट्रेनिंग विल बी फॉर 2 months, राइट? एंड एनीथिंग बताया कि वीक में कितने डेज होने वाला है, कुछ तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिला? नो सर। No, sir. No, sir. 6 days? आई डोंट थिंक सो। कौन सा डे ऑफ रहेगी? हाँ, कौन सी डे ऑफ रहेगी सर? 6 days तो नहीं रहेगा, बट आई विल जस्ट कंफर्म दैट कितने डेज रहेंगे वीक में, एंड आई विल लेट यू नो। बाकी मोस्टली संडे तो ऑफ रहेगा ही, बाकी आई विल यस। कंफर्म कि कितने डेज का है वीक में। ओके, बिकॉज अगेन वी हैव टू कवर मशीन लर्निंग एज वेल विद इन दिस 2 month, एंड हमें ये प्रैक्टिकली करना है, मुझे बस कोई थियरी ऐसा स्टोरी नहीं बताना है, हमें हैंड्स ऑन भी करना है, सो दैट यू गाइस विल बी कॉन्फिडेंट ऑन योर सेल्फ, राइट? ओके सर। Okay. Before we quickly start, just I'll take more 5 7 minutes to shop. Guys, किसनों के पास लैपटॉप है?
Just raise your hand. Raise your hand. कितने का लैपटॉप है? Aryan, Shivam, Gretu, Chandni and Ronak. Okay, okay, fine. Okay. कितनों के पास नहीं है? Okay, Sham, Ayush, okay, Saurabh, Rajesh, Sudhanshu. Okay, we can take like 60-40 वाला ratio है. Or is it 50-50? Yes, sir. Yes, sir. So you guys will be coding it on mobile, right? Mobile पे रहेगा. ठीक है. That would be much better because Python का थोड़ा बहुत तुम लोग सीख लोगे on phone, but machine learning नहीं हो पाएगा. I'm just telling you a prerequisite. सर मशीन लर्निंग जो सेकंड ईयर में 2 जन है ना, दोनों के पास है लैपटॉप। नहीं, I guess ये सारे Python plus machine learning के लिए है, I guess. ओह, Right, सभी लोगों ने Python plus machine learning. सर आई थिंक हम लोग को टोटल सीखना क्या क्या है पाइथन में? See, before jumping into machine learning, अगर तुम लोग machine learning के लिए भी opt किए हो, because I'll confirm this thing, तो Python के जो भी needed चीजें हैं वो हम पढ़ाएंगे. And Python में हम will be covering various topics जो in detail ऋषभ बता देगा. मैं तुम्हें एक overview देता हूँ. It will be like basic variables वगैरह जो एक सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कॉमन होता है. वेरिएबल्स हो गया, इफ एल्स स्टेटमेंट हो गया, लूप्स वाले हो गए, कंडीशनल स्टेटमेंट जैसे इफ एल्स ही बोल दिया, फिर लूप्स में बहुत टाइप आ गए. देन वी कम टू दिस थिंग फंक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट है. देन वी हैव दिस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ये 4 से 5 टॉपिक जो होते हैं, बी इट एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. ओके, एंड ये क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, कहाँ यूज किया जाएगा, वो सब भी तुम्हें बताऊंगा ड्यूरिंग दैट थिंग. I'll completely share the course outline. Give me just 2 days, and in detail जो रहेगा, I will share it in the group. Okay. Perfect. ठीक है, चलेगा. और मशीन लर्निंग के हम कुछ दिनों बाद बात करेंगे कि what guys तुम्हें कितना आइडिया है मशीन लर्निंग का. चांदी एंड स्नेहा, बिकॉज ये लोग को तो कंप्लीट जीरो आइडिया है what I can expect. Okay. चलेगा, fine. Then I guess we are pretty good to go. We can start with today's thing. Yes or no? Perfect. And every day we'll try to keep a quiz just to test your knowledge. And guys, please वो जो quiz रहेगा वो ChatGPT या कोई चीज कॉपी मत करना, because it is just for your learning purpose. We are not going to do any criminal case on you अगर fail हो जाओगे. So it is okay. अगर fail भी होते तो कोई problem नहीं. But only motive is do it honestly. And we are there to explain you as many times you ask the doubt. कोई issue नहीं है. ठीक है, then I'll hand over to Rishabh. Rishabh, you can continue. If there is any doubt, any problems, you guys and Rishabh, you can reach out to me. Okay, I'm on the meet. Yeah, sure. So hey everyone, कैसे हो आप लोग? Fine, sir. Fine, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग भाई. देखो, अपन आराम से बातचीत करके पढ़ेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं, और ऐसा पढ़ेंगे कि लाइफ टाइम याद रहेगा. तो तुम सब रेडी हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके. तो एक मुझे बेसिक सा क्वेश्चन, जैसा अभी सर ने थोड़ा थोड़ा आइडिया दे दिया है, तुम्हें पाइथन से क्या समझ में आता है? पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सर. इससे हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं. अरे नहीं भाई, ये तो किताबी ज्ञान है. खुद बताओ ना, पाइथन वर्ड से क्या समझ में ऐसा कुछ समझ में आता है क्या? सापो जैसा दुनिया, ऐसा कुछ? अच्छा, पाइथन का लोगो देखा है तुम लोगों ने? यस सर सर। कैसा लगता है? क्या देखने में क्या लगता है कि क्या किससे बना होगा? Snacks, sir. स्नैक्स से. लेकिन एग्जैक्टली में ये स्नैक्स नहीं होते. इसका नाम जी सर, वो अपने फेवरेट कैरेक्टर पे लिया गया सर. किस पे? सर वो अपना फेवरेट एक्टर था मोंटी पाइथन, उसके नाम CD पे लिया actor गया. में. ओके. तो थोड़ा सा आइडिया कुछ लोग को पता, कुछ लोग को नहीं पता है.
तो थोड़े से आइडिया मैं देता हूँ पाइथन कहाँ से आया, कैसे आया, देन हम सीधा पाइथन पे चलते हैं, थोड़ी चीज़ें देखेंगे, बीच बीच में थोड़े क्वेश्चंस असेसमेंट मिलेंगे, अच्छे से सीखेंगे और एंजॉय करेंगे। चलेगा? Yes. यस Yes, सर। sir. तो सबसे पहले एक छोटा सा पाइथन है क्या। पाइथन एक सिंपल और इजी टू कोड लैंग्वेज होता है। ओके, मैं थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करूंगा, जस्ट अभी थोड़ा सुनते हैं फिर आगे करते हैं। पाइथन एक सिंपल और इजी टू कोड लैंग्वेज होता है। पाइथन ऐसा मानो जैसे इंग्लिश लैंग्वेज जैसे तुम पढ़ते हो लिखते हो, इट्स सेम लाइक पाइथन। जब पाइथन अच्छे से सीख जाओगे तुम्हें लगेगा भाई मैं कुछ नहीं, मैं इंग्लिश ही लिख रहा हूँ, बस छोटे छोटे वर्ड को लिख रहा हूँ। इतना समझ में आया? Yes, sir. Yes, यस सर। Yes, sir. तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि भाई पाइथन क्या है, सिंपल होता है, और दूसरा हम इसमें इजीली कोड कर सकते हैं। अब दूसरी बात, हम पाइथन ही क्यों पढ़ रहे हैं। तो पाइथन सबसे पहले पढ़ने का रीजन है कि ये फ्री होता है, ओपन टू सोर्स है। अब फ्री का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा? जिसके लिए हमें पेड ना करना पड़े। ओके, हमें कुछ इसके लिए कोई पैसे नहीं खर्च करने, हम इसे इजीली यूज कर सकते हैं किसी भी सिस्टम में, तो ये फ्री होता है। एंड दूसरा, पाइथन इज एन ओपन सोर्स, ओपन सोर्स होता है पाइथन। ओपन सोर्स को मतलब बताओ क्या होता है। जिसको कि सर कोई भी आराम से और इजी सीख सके। क्या? देखो, ओपन सोर्स का मतलब होता है कि इसमें तुम, अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया है जो पाइथन से तुम कुछ नया कर सकते हो, तुम उनके गिटहब रेपो को उठा के उससे कुछ नया बना सकते हो, तुम अपना रिसर्च करके कुछ नया प्रोडक्ट, नई लाइब्रेरी, नए स्टेटमेंट कुछ भी डाल सकते हो। बेसिकली ओपन सोर्स का मेन मतलब यही है। ठीक है, तो ये बताओ जिसके पास लैपटॉप है उनमें पाइथन इंस्टॉल है पहले से? Yes, sir. Yes, sir. सर ओके, और जिनके पास पाइथन नहीं है इधर, वो तुम्हारा एक, जस्ट अ सेकंड मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ फिर बताता हूँ। माय स्क्रीन इज विजुअल टू ऑल। Yes. सर यस सर। आप अपने प्रोजेक्ट से जानते हैं जिसके पास वो है, and वो सभी को बता सकते हो। अगर लैपटॉप में ये कोड सर यूज कनेक्शन कर रहा है सर, वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है सर। ऋषभ वॉइस ब्रेक हो रहा है। किया है। हेलो, सर वॉइस ब्रेक हो Hello. रहा है। सर वॉइस ब्रेक हो रहा है। अबे यार, shit. हेलो, यस सर, क्लियर आ रहा है। ओके ओके ओके, आई सॉरी होगा। सॉरी सॉरी गाइस, थोड़ा सा Yes, sir. नेटवर्क का इशू होता है इधर। तो जिनके पास लैपटॉप है, जो जिनके पास लैपटॉप नहीं है, तो हम सबको साथ लेके चलने वाले हैं। तो आप लोग अपने ब्राउजर पे जाओ और वहाँ ब्राउजर पे जाके सर्च करना। आप सर्च कर फिर लो। से सर वॉइस वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। स्क्रीन शेयर करने से ऋषभ Rishabh, I guess your voice is breaking when you're sharing the screen. नेटवर्क बैंडविड्थ का कुछ इशू है क्या? आई थिंक सो। अभी ओके? See, it should work. अभी बहुत परफेक्ट आ रहा है। ओके, सो ओके, ट्राई वन थिंग, ट्राई रीजॉइनिंग एंड फिर स्क्रीन शेयर करके एक बार ट्राई करो
or else we'll figure out some way. Okay. Hello. डिनर होगा सभी का? यस सर। Yes. No, sir. No, sir. Dinner. Vishnu, try speaking. Hello. Yeah, it is perfect, I guess. Let's confirm. Am I audible? Is it properly audible to all? Yes, sir. तो पहले आप अपने ब्राउजर पे जाना, ब्राउजर पे जाके आप सर्च करना गूगल। सर फिर से कर रहा हूँ। थोड़ा सा can you share the screen please? Sorry. Can you share the screen please? Like, I think the bandwidth का हाँ, कुछ sure. issue. Okay. हाँ, please. I'll share my screen. No issues. हाँ. Oh my gosh. Let me on it follow. By the way, तुम लोग बताओ कि लाइफ में किसी ड्रीम कंपनी का टारगेट किया तुम लोगों ने? Yes, sir, of course, क्या हूँ? कौन सा? यस सर। कौन सा? Microsoft. Bain and Company. ओके. Microsoft. माइक्रोसॉफ्ट वाले कितने लोग हैं? हैंड रेज करना. ओके, ग्रेट. ओके. एंड गूगल वाले कितने हैं? ओके, ओके, ओके. एंड कितने को मशीन लर्निंग में इंटरेस्ट है? ओके. आई थिंक ओके. मैं काम करता हूँ, मैं गाइड करता हूँ. ओके, आई थिंक सर का इस हाँ, परफेक्ट. आपको अपने ब्राउजर पे जाना, इधर आप फोन यूज कर रहे हो, लैपटॉप यूज कर रहे हो, आपको सर्च करना है गूगल कोलैब. एक बार आप ओपन कर लो फिर मुझे बता देना, तो हम साथ में चलेंगे, बट थोड़ा जल्दी करना. सर वेबसाइट का क्या नाम है? गूगल कोलैब. अच्छा सर, मैं लिंक शेयर कर दे रहा हूँ. एंड जो लैपटॉप पे है, अगर वो उनके बीएस कोड वगैरह पे काम करना चाहते हैं तो ओके, कोई इशू नहीं है. आई थिंक नेटवर्क इशू है उधर भी. जस्ट अ सेकंड, मुझे बताना अगर नेटवर्क का इधर इशू अगेन आता है तो. हेलो. आ रही है सर। नोटबुक लोडिंग आ रहा है। ओके. वॉइस ठीक है अभी? यस सर। यस ठीक। हाँ सर, हाँ जी. आई एम प्रॉपर्ली ऑडिबल. ओके. Yes, sir. ओके. सो दिस इज द लिंक वेयर ऐसा कुछ आइकन आपको दिखेगा गूगल कोलैब पे क्लिक करना.
सर आवाज कर रहा है। हेलो हेलो सर क्लियर आ रहा है सर। ओके आई एम ऑडिबल Yes. यस सर। इतना हो गया अगर कोलैब को ओपन करना कोलैब को ओपन करने के बाद राइट साइड में देखना कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा होगा ये कनेक्ट करके रखना अदरवाइज आपका कोड इधर रन नहीं होगा यस सुधांशु कोई इश्यू है इधर ओके हो गया क्या सर रिपीट अगेन सर। मैंने लिंक भेजी है कोलैब पर जाना गूगल कोलैब पे जाके आपके गूगल कोलैब पे जाना कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा यहाँ से न्यू सर नोटबुक ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा क्या है। ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है। So what one? So also Google कॉलम में जाके ना गूगल कोलैब में जाना न्यू नोटबुक ये दिख रहा है रस्तो हेलो सूरज सर Yeah, sure. Yeah, I'm there. ऑडियो इशू सॉरी Yeah, you're facing this audio issue because after sharing the screen, I think bandwidth का issue आ रहा है and problem दे रहा है. Okay, we can do one thing. आज का session I will continue and I guess it will fix this thing. चलेगा? ओके नो इश्यूज No issues. I'll take over on this. So I'll share my screen. So you can stay in the meet, Rishabh, and if you guys have any doubt, you can resolve them as well. या श्योर तो गाइस दिस थिंग्स हैपन जैसा होता है काफी बार ऑनलाइन में नेटवर्क इज द बिगेस्ट चैलेंज दैट वी यूजुअली फेस ठीक है आई थिंक मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है सभी को आफ्टर आई शेयर द स्क्रीन yes. यस सर। यस यस सर। एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड ये फ्रस्ट्रेटिंग लगता है बार बार वॉइस ब्रेक होना वीडियो लैग होना सो दैट इज फर्स्ट डे है सो एवरीवन हैज टू बियर समथिंग ओके ठीक सो कमिंग दिस थिंग गूगल कोलैब ये गूगल कोलैब इज द थिंग दैट यू हैव टू सर्च ऑन गूगल ये सर्च करने के बाद ये जो सिंबल दिखेगा नेटवर्क कितना बेकार है यहाँ का विजिबल है सूरज सर को देना पड़ा यस सर। मैं जूम कर देता हूँ जरा सा सो या दिस इज द थिंग यू हैव टू क्लिक ऑन ये क्लिक करने के बाद यू कैन सी ऐसा कुछ पेज आ सकता है या तुम इधर ऑफ देम ओपन कोलैब भी कर सकते हो न्यू नोटबुक भी कर सकते हो मैं बोलूँगा ओपन कोलैब करके जाओ बिकॉज तुम फर्स्ट टाइम शायद कर रहे रहोगे ठीक है ओपन कोलैब कर दिया फिर क्या होगा ओके ये मैंने एक पाइथन फाइल बना दिया था अगर ठीक है लेट्स सपोज विल डिलीट दिस थिंग fine you click on it it will just open a thing अगर नहीं वैसा कुछ तुम्हारे पास फाइल्स है तो जो न्यू नोटबुक का ऑप्शन था यू कैन क्लिक ऑन दैट एंड यू कैन जनरेट अ न्यू नोटबुक ओके तो ऐसा कुछ तुम्हारे पास इंटरफेस आ जाएगा समझा इतना हो गया सभी का यस सर हो गया मेरा। परफेक्ट 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 सो गाइस कैन सर नहीं हो रहा सर। नहीं हो रहा क्या नहीं हो रहा क्या इशू आ सर रहा हो गया सर हो गया।
You guys can like this as a response दे सकते हो. I can see it. Okay. Fine. सब होने के बाद अगर तुम लोग को यहाँ पे लिखा होगा untitled.ipynb लिख के आएगा, राइट? You can just click on that and तुम उसका नाम चेंज कर सकते हो. Any name you can give. I am giving it as Python day 1. ठीक है? And normal enter. तो ये सेव हो गया. और ये जो तुम बनाओगे इसमें जो भी पाइथन के जो नोटबुक बना रहे हो, ये स्टोर कहाँ पे हो रहा है? ये तुम्हारे गूगल अकाउंट के गूगल ड्राइव में स्टोर होगा. ओके, तो तुम अपने गूगल ड्राइव में जाके ये चीज़ें एक्सेस कर सकते हो. एवरीवन क्लियर? सभी यहाँ तक पहुँच गए? यस सर। यस सर। Yes, sir. जो नहीं हुआ, किसी को कुछ प्रॉब्लम्स? जी जी, ओके परफेक्ट. तो ये जो चीज़ दिख रहा है तुम लोग को, दिस इज अ कोड सेल. इसको क्या बोलते हैं? कोड सेल बोलते हैं. व्हेन यू कम टू दिस एंड इसके एज पे अगर तुम होवर करोगे माउस को, तो यू कैन सी टेक्स्ट एंड कोड. मुझे अगर दूसरा सेल चाहिए रहेगा, आई कैन सिंपली क्लिक ऑन कोड एंड आई विल गेट सेकंड लाइन. ओके, वैसे हम मल्टीपल कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं. लाइक सिंपल गो ऑन क्लिकिंग, वो उतने नंबर ऑफ सेल्स बनाते जाएगा. क्लियर इतना? यस। परफेक्ट, ठीक है. चांदनी एंड स्नेहा, हैव यू गाइस वर्कड ऑन कोलैब पहले? द सेकंड ईयर गर्ल्स, तुम लोगों ने पहले काम किया है कोलैब पर? नो सर. नहीं किया है? ओके, नो इश्यूज. क्योंकि जो भी मशीन लर्निंग रिलेटेड चीज़ें होंगी वो मोस्टली कोलैब पे की जाती है. एंड द रीज़न इज मशीन लर्निंग के मॉडल्स को रन करने के लिए तुम्हारे लैपटॉप में जीपीयू होना चाहिए. एंड अगर जितना कॉम्प्लेक्स तुम्हारा मॉडल रहेगा उतना ज़्यादा हैवी जीपीयू का ज़रूरत है. एंड यूजुअली लैपटॉप्स में उतने हैवी जीपीयूज कम लैपटॉप्स में होते हैं या फिर बहुत महंगे लैपटॉप्स में होते हैं. इसके लिए हम गूगल कोलैब प्रेफर करते हैं मशीन लर्निंग के लिए, बिकॉज यहाँ पर तुम्हारा लैपटॉप का जीपीयू यूज़ नहीं होता है, तुम्हारा क्लाउड जीपीयू यूज़ होता है. राइट, यू कैन सी हियर रैम एंड डिस्क जो दिख रहा है ना, ये तुम्हारे लैपटॉप का नहीं है, ये गूगल के क्लाउड का है. मतलब गूगल का जो सर्वर है हम वो यूज़ कर रहे हैं. यू कैन सी कनेक्टेड टू पाइथन 3 गूगल कंप्यूट इंजन बैकएंड. सर हम लोग का वैसा नहीं होता. हाँ, तुम लोग, अच्छा तुम लोग ने कनेक्ट नहीं किया रहेगा. तुम लोग के उधर कनेक्ट लिख के आ रहा होगा यस सर. क्या? तो क्लिक ऑन द कनेक्ट. कनेक्ट करोगे तो गूगल के पास जो सीपीयू है, उनका जो बड़ा जो सर्वर्स होता है, उसमें से एक सीपीयू एलोकेट हो जाएगा तुम्हारे ये मशीन लर्निंग के या जो भी पाइथन रिलेटेड काम के लिए. तो उनके पास सीपीयू भी है, जीपीयू भी है. यू कैन सी, ये जो एरो पे क्लिक करोगे ना, तो तुम यहाँ पे चेंज रन टाइम पे आने के बाद देख सकते हो मल्टीपल ऑप्शन है. तो सीपीयू बाय डिफॉल्ट रहता है. T4 जीपीयू भी है, V2 टीपीयू भी है. अभी टीपीयू इज अ बिट कॉम्प्लेक्स थिंग जो जीपीयू के ऊपर आता है. इस पे अभी हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वी विल डिस्कस दैट लेटर. बट या ये जो सीपीयू जीपीयू है, ये तुम्हारे लैपटॉप का यूज़ नहीं होगा, ये गूगल का यूज़ होगा, तो जिससे तुम्हारे लैपटॉप पे लोड नहीं आता. तो सब लोग ने कनेक्ट कर लिया? यस सर। हो गया, सबका टिक मार्क आ गया रहेगा? यस सर। परफेक्ट, यस सर. ठीक है. ओके सर रिकनेक्ट ऑप्शन आ रहा है सर. हाँ, तो रिकनेक्ट कर लो, कोई इशू नहीं है. रिकनेक्ट करोगे तो वो वापस से कनेक्ट हो जाएगा. जस्ट लेट मी नो, जिस सबका हो जाएगा तो हम साथ में करेंगे. ओके, एंड मैं तुम लोगों को नोट्स भी शेयर कर दूंगा. पाइथन का जो डिटेल्ड नोट्स है, जो कोड वोटेक्स की तरफ से कस्टम मेड है विथ प्रॉपर एग्जांपल, असाइनमेंट्स वगैरह सब है उसमें, तो यू कैन डू इट फॉर प्रैक्टिस वगैरह भी. तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगा तुम लोग को. ठीक है. सर इसको लैपटॉप में करने के लिए कितना जीपीयू चाहिए सर कम से कम? और कोलैब को करने के लिए, कोलैब को करने के लिए तुम्हें कोई नहीं चाहिए. सी कोलैब ना सर, लोड मशीन लर्निंग का. मशीन लर्निंग का कोड के लिए यूजुअली एनवीडिया के जीपीयू वाले लैपटॉप रिकमेंड होते हैं. इसमें भी डिपेंड करता है तुम मशीन लर्निंग में किस लेवल का कोड करने वाले हो, कितना कॉम्प्लेक्सिटी करने वाली. बहुत ज़्यादा हार्ड कॉम्प्लेक्स कोड जो रहता है उसमें हेवी जीपीयूज लगते हैं, जो शायद लैपटॉप उतना हैंडल ना कर सके. ये मोस्टली उस टाइम यूज़ होता है जहाँ पे
तुम कैमरा पे डील कर रहे हो, जैसे कुछ तुमने ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया जो गाड़ी का नंबर प्लेट डिटेक्ट कर रहा है, तो उसमें सीधा देख के बताता है ना कि जो कौन सी गाड़ी ने फाइन मतलब सिग्नल तोड़ा नहीं तोड़ा, फाइन लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए। तो वो टाइम पे भी मशीन लर्निंग ही यूज होता है। वो जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, नंबर प्लेट डिटेक्ट करने के लिए हो गया, इंसानों को डिटेक्ट करने के लिए हो गया। लेट्स सपोज महाकुंभ मेला में कैमरा लगा था, उसमें डिटेक्ट करा था कि उस पर्टिकुलर कैमरा में जितने भी लोग दिख रहे हैं, तो उसका काउंट पूरा बता रहा था कि इधर कितने सारे लोग हैं एंड उसमें से कौन मेल है फीमेल है सब बता रहा था। तो ये सब भी मशीन लर्निंग होता है। तो ये सब जो कैमरा रिलेटेड सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हैवी जीपीयू लगता है, जो हमारा लैपटॉप उतना केपेबल नहीं होता। बट सीखने के लिए तुम सीख सकते हो। उसके लिए कुछ ऐसा हैवी 50,000 to 60,000 का लैपटॉप रहेगा या मैक्स 70,000 का लैपटॉप रहेगा, इट इज़ वेल एंड गुड, कोई इशू नहीं है। बट इन केस तुम्हारा लैपटॉप केपेबल नहीं है, उसी के लिए कोलैब इज द बेस्ट ऑप्शन। ये कोलैब जो है तुम्हारे लैपटॉप के जीपीयू सीपीयू से पावरफुल होता है। इधर अगर आपको एमएल पे मशीन लर्निंग के लिए चाहिए तो आप, मैं जैसे सर के पास 5 कोर और ये मैकबुक है, तो मैकबुक में 8 कोर जीपीयू 8 कोर सीपीयू 8 कोर जीपीयू मिलता है, तो आप इजली वहां से ले सकते हो। एंड ये इनफ है उतना, आप कोई सा भी डेटा उधर काम कर सकते हो। Anyways, I'm not promoting any Mac वगैरह, एप्पल ही लेना चाहिए तो ही कर पाओगे ऐसा कुछ नहीं है। विंडोज में भी होता है, पढ़ने का मन होना चाहिए, एटीट्यूड। ओके, बट दिस इज द थिंग, अगर इफ यू हैव द बजट यू कैन गो फॉर इट, अदरवाइज इट इज नॉट एट ऑल मैंडेटरी कि यही लेके करना। ओके, एग्जैक्टली सर। सो आई गेस सभी का हो गया, ये कनेक्ट हो गया रहेगा। सब लोगों ने नोटबुक बना लिया एंड रीनेम भी कर दिया होगा। ओके, यस सर। परफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो नोटबुक के नाम के आगे लिखा है IPYNB। यूजुअली इट इज अ .mp4 में सेव होता है। वैसे जो अलग अलग प्रोग्रामिंग फाइल्स होते हैं, .cpp में सेव होगा, .java में सेव होगा, एंड पाइथन वाले .py में सेव होते हैं, राइट? यस सर। बट IPYNB क्यों है? एनी गेस, एनी आइडिया? नो आइडिया सर। ठीक है, सिंपली इट इज अ पाइथन नोटबुक। आई विल शो IPYNB का फुल फॉर्म क्या है, देख लो। इंटरैक्टिव पाइथन नोटबुक। जो एनबी मतलब नोटबुक है, इंटरैक्टिव मतलब वी आर इंटरैक्टिंग विद दैट नोटबुक। सिंपल, ये पाइथन है, इसके लिए PY, और कोई बड़ा प्रोजेक्ट ये इतना नहीं है। ठीक है, फाइन। नॉर्मली अगर तुम VS कोड में करोगे तो वो PY में सेव होगा, एंड IPYNB भी VS कोड में ओपन होता है, उसमें जैसे सेल फॉर्मेट नहीं ओपन होगा। ठीक है, perfect. Now let's come to the real topic, that is variables. The first topic of any programming language is variables. Before jumping into it, I just want to know कि तुम लोग ने अगर प्रोग्रामिंग थोड़ा बहुत भी किया है या पाइथन थोड़ा बहुत भी किया है, वेरिएबल का मतलब पता है? बता सकते हो कोई? यस सर। बताओ। सर कोई भी हम लोग इनपुट देते हैं, जैसे A=10, B=20, जैसे कोई भी सिंटैक्स का वैल्यू प्रिंट कराना हो। सिंटैक्स का वैल्यू प्रिंट कराना हो। सर जिसको भी वहाँ स्टोर करते हैं सर वही वेरिएबल। एग्जैक्टली, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। Sir, variable like container. राइट, वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्ड, कंटेनर। राइट, ठीक है। सो एग्जैक्टली, प्रीटी मच यू गाइस आर करेक्ट। वेरिएबल्स को हम एक कंटेनर की तरह समझ सकते हैं जिसके अंदर हम एक स्पेसिफिक डेटा स्टोर करेंगे। सिंपल, क्लियर है? तो मैं अगर एक इंग्लिश टर्म्स में बताऊं, a variable in Python is used to store data that can be referenced and manipulated in your code. Variables are simply names that refer to values or object. ये थोड़ा English is not so good to listen, है ना? उतना मजा नहीं आता। Okay, I'll explain this. मेरे पे रिकॉर्डिंग चल रहा है इस सेशन का। क्यों, क्या हो गया? Easy है, तुम लोग को इतना समझ में आता, I can understand that. Fine. Yes, sir. Okay. क्या? अब इसको लिखा कैसे जाता है?
सिंपल जैसे बोला a इज इक्वल टू 25 और इसको रन करने के लिए यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस प्ले बटन। नहीं रन हो वापस गया। से ना रिफ्रेश कर अब तो सही हो ये जाएगा। करने पे क्या हुआ, जो मैंने 25 जो लिखा वो मेरा a नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गया। सिंपल। ओके एक अभी काम 25 करो क्या ना, है, डेटा है, a क्या है, मेरा विंडोज वेरिएबल वाले है, से कर लो, विंडोज वाले से चल जाएगा। राइट। इसको मैं तुम्हें और फिर बेटर विंडोज समझा वाले सकता लैपटॉप पे हूँ। इसका सिंटैक्स मैं बताता हूँ क्या है। वेरिएबल ट्राई करो एक बार। इक्वल टू नहीं चल रहा, कितना हुआ था? सिंटैक्स मतलब पता, सिंटैक्स क्या होता है? कोड वगैरह हो गया, सबमिट हुआ? सिंटैक्स एस्केप का बटन यूज करना। Syntax like format. फॉर्मेट एग्जैक्टली। हम्म, तो फॉर नॉट एग्जैक्टली आई वुड से नहीं फॉर्मेट, चल बट रहा। या प्रियर लाइक 90% करेक्ट। द थिंग इज सिंटैक्स मतलब वो फॉर्मेट ही कह सकते हो या फिर एक लैंग्वेज बोल सकते हो, ग्रामर बोल सकते हो। ग्रामर मतलब कैसा होता है कि इंग्लिश में जो ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, तब जाके मीनिंग समझ में आता है, वैसा। कमांड डार करना। सिंटैक्स मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ग्रामर समझ लो। मतलब अगर हमें एक तो रिफ्रेश कैसे करते हैं इसमें? नहीं लिखा होगा फॉर्मेट, तो उसका फॉर्मेट क्या है, लेफ्ट साइड में वेरिएबल का नाम रहेगा, ओके, वेरिएबल नेम, राइट साइड में डेटा रहेगा, ओके, क्लियर। एंड हाँ ये कोई मैंने जो स्टार्ट लिखा वगैरह है चल दिस इज जाएगा। कमेंट। कमेंट वो लाइन होता है एक कोड में जो एग्जीक्यूट नहीं होता है, इसको बस हम एक अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए लिखते हैं कमेंट्स, राइट। अगर मैं ये एग्जीक्यूट करूंगा तो इसका कोई इशू नहीं होगा। एंड हम पाइथन में कमेंट कैसे देते हैं, यूजिंग हैशटैग, हम्म, समझा। चला कोई चला। भी कोड के आगे अगर हम हैशटैग लगा देंगे तो वो कमेंट बन जाएगा नहीं सीधा। चला, ये रीस्टार्ट हो गया। सर थोड़ा सा जूम कीजिए ना सर। हम्म, जस्ट अ सेकंड, अच्छा। इज इट विजिबल नाउ? Yes, sir. परफेक्ट। यस सर। यस सर। तो ये जो हैशटैग है, जब तुम कोई भी पाइथन में कोड के आगे आगे अगर हैशटैग लगा ओके, दोगे तो वो कमेंट बन जाता है। कमेंट क्या है, एक सिंपल स्टेटमेंट है जो एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब तुम कोड चलाओगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, उसको स्किप कर देता है, ओके, भगवान करे ठीक चल है। जाए, चल तो जाना चाहिए। मेरा भी चल, लास्ट टाइम यही हुआ था एंड तो चल अलग गया अलग था। लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से कमेंट लिखा जाता है। आई मीन जैसे पाइथन में हैशटैग यूज कर लिया तो जावा में डबल स्लैश यूज होता है, ऐसे, ओके। और लैंग्वेज पे डिपेंड करता है, राइट। नाउ यू कैन सी ए में हम लोग ने 25 सेव कर दिया। whenever we have like this thing इक्वल साइन के अगर राइट साइड में we have some data, उसका मतलब ये है कि वो डेटा हमेशा लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर होने वाला है। यू कैन नॉट डू लाइक दिस 25 इज इक्वल टू ए, ये नहीं कर सकते कभी। यू कैन सी तो क्या रेड कलर का मार्किंग ऑन, एक्सप्रेशन कैन नॉट बी असाइनमेंट टारगेट। नहीं दे इसका सकता ना, मतलब क्योंकि फिर नंबर के मेरी अंदर स्क्रीन तुम कोई रिकॉर्ड हो डेटा जाएगी, स्टोर फिर नहीं कर चलेगा सकते हो, नहीं। अंडरस्टूड। Yes, sir. वेरिएबल के अंदर डेटा रखना है, ना कि डेटा के अंदर वेरिएबल रखना है, क्लियर। यस सर। ठीक है, लेट्स सपोज ये हो गया a इज इक्वल टू 35। अरे एक स्टूडियो अभी का हम क्या लोग ने आता है ना, डिक्लेयर तो वो कर दिया, मेरे में था, वही लेट्स रिकॉर्डिंग चेक चल करते रही हैं। है। प्रिंट a सर को चाहिए पूरी रिकॉर्डिंग। 35, मतलब मैंने क्या किया, ये जो है ना ये प्रिंट स्टेटमेंट है। प्रिंट स्टेटमेंट मतलब सिंपली मैं प्रिंट करूंगा भाई या ये मैं क्या कर दिया, इंटरप्रेटर को बोलूंगा कि हेलो। ए में जो भी है उसको बताओ, मतलब प्रिंट करके बताओ कि ए में क्या रखा है, राइट। अभी मैंने इंटरप्रेटर वर्ड यूज कर ही लिया तो मैं बता देता हूँ। दो चीजें होती है, एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर। सुना, कंपाइलर सुना होगा, यस सर। ओके, ये सर कोड रन करने में हेल्प राइट, करता कोड है रन करने में हेल्प करता है। तो इंटरप्रेटर क्या करता है? सर। सेम करता है सर, वो सिर्फ मेथड अलग है सर दोनों का। क्या मेथड है बताओ? सर कंपाइलर जो रहता है वो एक साथ सबको कोड को एग्जीक्यूट करता है फिर रन करता है सर। और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है लाइन सर। बाय लाइन, एग्जैक्टली। तो अगर हम इसको कंपेयर भी करेंगे साइड बाय साइड, जैसे कि जावा लैंग्वेज में हम कंपाइलर यूज करते हैं एंड पाइथन में हम इंटरप्रेटर यूज करते हैं, तो
जावा लैंग्वेज थोड़ा फास्ट रहता है कंपेयर टू पाइथन लैंग्वेज। इसका मतलब ये नहीं कि पाइथन बहुत स्लो है, कंपेयर टू पाइथन लैंग्वेज जावा फास्ट है, ये पॉइंट है। एंड उसमें एक और चीज़ है, जब वो कोड पूरा कंपाइल करता है जावा, तो वो एक क्लास फाइल बनाता है, फिर उसको एग्जीक्यूट करता है। वेयर इन पाइथन वैसा कुछ नहीं होता, डायरेक्ट लाइन टू लाइन एग्जीक्यूट करते जाता है। क्लियर? यस सर। बाय द वे, हो गया था आंसर शाम ना? यस सर। गुड वन शाम। थैंक यू सर। सो यू कैन सी ए इज इक्वल टू 35 में हम लोग ने कैसे चेक किया, नॉर्मली प्रिंट स्टेटमेंट डाला, प्रिंट स्टेटमेंट को हमने बोला, आई मीन उसने ए पास किया, तो और हम लोग ने सिंपली रन कर दी, तो ये 35 प्रिंट हो गया। ठीक है, दिस इज, तो सबको समझ में आ गया है कि वेरिएबल में हम कैसा डेटा स्टोर करते हैं क्या नहीं। अब समझते हैं वेरिएबल को डिफाइन कैसे किया जाता है। ओके, बिफोर जंपिंग टू दैट, इधर तक सबको समझ में आया है? इधर तक सब लोग ने कोड किया है? Yes, sir. ठीक है, यस सर। वेरी स्लो, तुम लोग को समझ में आया, सो दैट आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि तुम लोग को कितना समझ में आ रहा है, कैसा नहीं आ रहा। ओके, मैं बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं जाऊँगा बिकॉज वो बोरिंग लगने लगा। ठीक है, अभी व्हाट आर रूल्स ऑफ डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल? क्या रूल्स हो सकता है? Any guess? I guess नंबर में नहीं ले सकते हैं, ये सही है कि गलत है? सही है सर। Exactly. स्टार्ट नहीं कर सकते नंबर से सर। यस सर। Exactly. So we cannot do like this. ठीक है, guys pretty much idea about कि कैसे क्या वेरिएबल कैसे स्टोर करना है, रूल्स वगैरह क्या, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, आई जस्ट यूज एज अ रिविजन दूंगा तुम लोग का ही, तो सबका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। ओके, ठीक है। तो देर आर सम रूल्स जिससे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, दैट इज वी कैनॉट स्टार्ट विद अ नंबर एंड व्हाट, कीवर्ड नहीं होना चाहिए, राइट? तुम्हारा जो वेरिएबल है वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए, जैसे कि यस सर। कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिसका कुछ स्पेसिफिक रोल या फिर कुछ मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड है। जैसे कि ये जो डेफ कीवर्ड है, ये हम तब यूज करते हैं जब हमको फंक्शन डिफाइन करना होता है। ठीक है, ये हो गया। ऐसे बहुत सारे अलग अलग कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हम यूज नहीं कर सकते व्हाइल डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल, बिकॉज उसका एक ऑलरेडी एक रोल सेट किया गया है पाइथन। ठीक है, so let's suppose, and again we cannot start with a number, या नंबर भी नहीं रख सकते। ओके, we can start with an underscore, we can use underscore as well। ओके, जैसे ये हो गया। या शाम, any doubts? सर कीवर्ड्स हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम रहता है अलग सर? ये अलग रहता है, डेफ कीवर्ड जावा में यूज नहीं होता है, ये पाइथन में यूज होता है, सो इट डिपेंड्स। जैसे ओके। या इट डिपेंड्स लैंग्वेज टू लैंग्वेज, बट मोस्टली कीवर्ड ऐसा तुम कुछ यूज करोगे, जनरली वो यूज में आते नहीं है। जब भी तुम कोई वेरिएबल बनाओगे ना, तुम्हारे माइंड में इतना कुछ कीवर्ड नहीं आएगा, तुम वो प्रॉब्लम में एनकाउंटर नहीं होते। या शिवम, यू आर हैविंग सम डाउट? नो सर। ठीक है, ठीक है, जैसे अब ये हो गया, फिर वी कैन सी t1 इज इक्वल टू 22, ये हो गया। और क्या कर सकते हैं? सम सर। सम, वो तो लाइक वेरी इजी थिंग है, यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग इट। ठीक है, यस सर, अंडरस्टैंड। ठीक है, तो नॉर्मली वी कैन, ठीक है। सो यू गाइस नो इसका आंसर क्या आ रहा है, 44 22 5, जो हम लोगों ने स्टोर किया था उस पर्टिकुलर वेरिएबल। एंड वन मोर थिंग,
लेट्स सपोज ये जो सम में मैंने 5 सेव किया है, कैन आई डू दिस? मैंने दो सेम वेरिएबल लिया सम, है ना? यस सर। ओके, इज इट यस? दोनों सेम है? Okay. ना सर वैल्यू अलग अलग है। ये अलग है। ओके, बट इधर भी सम है, इधर भी सम लिखा है ना? यस सर। क्या डिफरेंस है? Latest different. एग्जैक्टली। सो जब हम कैपिटल स्मॉल का भी डिफरेंस करेंगे एक वेरिएबल में, वो दोनों को अलग वेरिएबल में काउंट करता है पाइथन। सी, उसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग ने वर्ड क्या लिखा है। इट विल कंप्लीटली अंडरस्टैंड फ्रॉम बेसिक कि ये स्मॉल लिखा है कैपिटल लिखा है, ये भी डिफरेंस है, तो ये दो अलग वेरिएबल में काउंट होगा। क्लियर? ओके। यस सर। ये तो हमने अभी देखा नंबर में कैसे हम लोग ने स्टोर किया। और डेट टू स्टोर, मेरे को अगर एक वर्ड स्टोर करना, यूजुअली हम उसको बोलते हैं स्ट्रिंग। आई गेस विराट इज सबका फेवरेट कैरेक्टर, आई गेस सो। फाइन। जब हमें नंबर स्टोर करना है, हम कोई डबल इन्वर्टेड कॉमास यूज नहीं करते हैं, हम लोग डायरेक्टली उस नंबर को स्टोर करते हैं। बट व्हेन वी आर स्टोरिंग दिस थिंग, एक स्ट्रिंग डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो वर्ड को स्टोर कर रहे हैं, वर्ड को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग बोलते हैं, राइट? यस सर। स्ट्रिंग कैन बी अंडरस्टूड एज वी हो गया, एक कैरेक्टर हो गया, ये सिंगल अल्फाबेट कैरेक्टर्स। जब वो एक सीक्वेंस खाते हैं उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। तो जब हम स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं तो वी ऑलवेज यूज डबल कोट्स। ठीक, सेम तरीका है, सिंपल। क्लियर? ये तो अभी तुम देख सकते हो ये कीवर्ड है, इसके लिए इसका कलर चेंज होगा, राइट? बट ये नहीं है। डेसिमल बोलो, समझेगा। फ्लोट एंड डेसिमल जो वर्ड है उसका मतलब सेम ही है। फ्लोट मतलब दिस थिंग। दो चीजें होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इंट एंड फ्लोट। इंट मतलब तुम्हारा नंबर जिसमें कोई डेसिमल नहीं होता, फ्लोट मतलब डेसिमल नंबर। ठीक है? ओके, सो यू कैन सी, अभी मैं तो करूंगा डेसिमल वैल्यू, तो ये जा रहा है 5.6। क्या शाम? सर वेरिएबल्स में हम लोग गैप नहीं दे सकते हैं सर, स्पेस? नहीं दे सकते। इसके लिए मैं अंडू यूज, अगर मैं स्पेस दे तो अलग हो जाता है। इट इज अंडरस्टूड एज इंग्लिश बट दैट डजंट मीन कि ये पूरा इंग्लिश है। क्योंकि इधर जो वेरिएबल्स बने वो एक सिंगल कंटेनर होगा, राइट? ये सिंगल कंटेनर थोड़ी होता है। यस सर। You shouldn't give any space while declaring a variable. सर उस जगह पर कॉमा भी दे सकते हैं, कहाँ? डेसिमल और वैल्यू के बीच में। No, I mean, how can you give that error? See, cannot unpack non-iterable float objects. अभी एरर आने का रीजन में बता, अब अभी जैसा कि मैं हर चीज में बताने जाऊंगा फिर तुम्हें वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगने लगेगा। अभी के लिए विल डेफिनेटली कम टू, कुछ एरर्स आते हैं तो एरर्स कैसे सॉल्व करना होता है। काफी बार तुम्हें इंडेंटेशन एरर पाइथन वो आएगा, वो कैसे सॉल्व करना है, राइट? होगा ना इंडेंटेशन, काफी फेस भी किया होगा। नो सर। नहीं किया? नो। पाइथन लिखा नहीं क्या अभी तक? नो सर, बेसिक। ठीक है। जब हम फंक्शन करेंगे ना तब तुम्हें समझेगा वो इंडेंटेशन एरर क्या है फंक्शन एंड लूप्स में। ऑल्सो टेल एरर्स कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है।
सी अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, और मैंने बोल दिया कि यहाँ इस नेम नाम के वेरिएबल में हम क्या स्टोर कर रहे हैं, स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं, राइट। इस चीज को हम प्रूव कैसे कर रहे हैं, हम उस पर्टिकुलर वेरिएबल का टाइप पता कर रहे हैं कि उस वेरिएबल में किस टाइप का डेटा स्टोर हुआ है, प्रिंट टाइप नेम। तो हम ये करते हैं, जिस टाइप का डेटा हुआ रहता है वो प्रिंट हो जाता है। यू कैन सी क्लास एस टी आर मतलब स्ट्रिंग, वो सर स्ट्रिंग। हो गया सर। ओह जस्ट अ सेकंड, सॉरी सर, what is happening man, this shouldn't happen and really sorry for this. Okay, No. ठीक है, विजिबल है अभी। Yes, sir. यस सर। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, जैसे सर और एक बार बता दीजिए। हाँ मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने इस नेम नाम के वेरिएबल में विराट नाम वाला स्ट्रिंग स्टोर, राइट, बट अगर मुझे वेरीफाई करना है कि ये स्ट्रिंग है या इस में किस टाइप का स्टोर हुआ है, वो मैं कैसे करूँगा, इन द स्ट्रिंग प्रिंट टाइप नेम, मतलब नेम जो वेरिएबल कौन से टाइप डेटा स्टोर हुआ है वो मैं प्रिंट कर रहा हूँ, सी क्लास स्ट्रिंग, अंडरस्टूड। str मतलब स्ट्रिंग होता है, मतलब इस नाम के वेरिएबल में जो डेटा स्टोर है दैट बिलोंग्स टू स्ट्रिंग क्लास। क्लियर। हम Yes, sir. इसके लिए भी चेक करते हैं क्या आएगा, प्रिंट टाइप डेसिमल अंडरस्कोर वैल्यू। मेक जो तुम इधर टाइप के अंदर ये लिखोगे, जो प्रिंट के अंदर भी जो वेरिएबल का नाम लिख रहे हो वो एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, नहीं तो पाइथन को मिलेगा ही नहीं कि तुम, वो बोलेगा कि तुमने ऐसा वेरिएबल को डिक्लेयर ही नहीं किया। सी क्लास फ्लोट, understood, this is float value. Let's try for this one, print type sum, see class integer, समझा। Yes, sir. Yes, sir. टाइप फंक्शन कैसे यूज करते समझा। Yes, sir. Yes, sir. अभी जब हम पढ़ेंगे तब तुम्हें अच्छे से बताऊंगा कि फंक्शन एग्जैक्टली कैसे चलता है। टाइप फंक्शन ही मैंने क्यों बोला, ये प्रिंट भी एक फंक्शन है, उसके अंदर हम कुछ पास कर रहे हैं, जैसे ये फंक्शन के अंदर फंक्शन है, वो सब चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे वो टाइम। अभी के लिए समझो कि टाइप फंक्शन है जो बता रहा है कि उस वेरिएबल का क्या टाइप है, उसके अंदर कौन से टाइप का डेटा स्टोर है। परफेक्ट, इजी एवरीवन। Yes. Yes, sir. तो यस सर। तब में कर रहे हो ना ये, Yes. किए हो तो कर लो ये फटाफट। स्ट्रिंग एंड डेसिमल वैल्यू का तुम लोग एग्जांपल यहाँ से लिख लो, बाकी इंट का तुम लोग खुद से बना सकते हो। ओके, आई एम जस्ट गिविंग यू 2 minutes, क्विकली डू इट। ओके, जब तक आपका ये गिफ्ट इस चमकीले कागज के अंदर बंद होता है ना, तब तक ऐसा लगता है लेट मी नो अगर हो जाए। कि वो ओके, सारी चीज होगी जो मुझे चाहिए। इसमें भी नहीं है मौजूद गन, इसमें पक्का मौजूद गन होगी। मुझे पता है जब इसको खोल
You are in done. Others, do it quickly. Perfect. Great, great, great. Good response. Well, participants more. Finish it up. जिसका नहीं हुआ. Done. Shubhanshu, Ayush, Suchi, Shiva. Snail, done. Perfect. Take it. चलिए. We'll move forward. ओके, इतना तो समझ गया कि हम वेरिएबल कैसा डिक्लेयर करते हैं एंड किस तरह से डेटा स्टोर हो रहा है एंड वेरिएबल में किस टाइप का डेटा स्टोर हो रहा है वो भी हम पता कर सकते हैं. एक और चीज़ है, यूजिंग कॉमा जो शाकिब कह रहा था, दिस थिंग इज रॉन्ग. आई कंप्लीटली एग्री. राइट, बट सी ये एग्जीक्यूट हो गया. एनीवन, ये क्यों एग्जीक्यूट हुआ? या शिवम? सर वो हमारा डालने पे जो एरर दे रहा है तो हमें पता कैसे चलेगा अगर हम कोड कर रहे हैं, हमें पता कैसे चलेगा कि हमें कोमा से एरर आ रहा है या फिर कोई और लाइन में भी एरर है? गुड क्वेश्चन. दो टाइप के एरर होते हैं. एक ऐसा एरर होता है जो तुम्हें एग्जैक्टली देख के नहीं समझता है, वो जब ऐसा कुछ लिख के आता है तब तुम समझ पाते हो कि हाँ ये एरर किस टाइप का है. एक ऐसा एरर होता है जिसके लिए तुम्हें कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए. राइट, अभी ये उस एरर में आता है जहाँ पे यू शुड नो कि सिंटैक्स क्या है, जो तुम्हें समझ में आना चाहिए. एग्जाम्पल अगर मैं कर दूँ a is equal to 10, अभी नहीं को दिखा दिया रेड मार्क सो दैट तुमको पता चले कि वेरिएबल हम लोग ने गलत तरीके से डिक्लेयर किया. लेट सपोज ये अगर नहीं दिया हो तो भी हमें ये नॉलेज होना चाहिए कि वेरिएबल्स किस तरह से डिक्लेयर नहीं किया जाता है. राइट, लेट सपोज हमने रन भी कर दिया, क्या आ रहा है? सिंटैक्स एरर, मतलब तरीका गलत है. राइट, हमें कुछ चीज़ें बेसिक हमको समझनी पड़ेंगी कि हाँ ये चीज़ ऐसी ही की जाती है, इसको हम नहीं गलत कर, मतलब इसको हम ऐसा ही लिखना चाहिए. जैसा मैं बोलूँ, ये चलेगा. द रीज़न इज जब हम मल्टीपल वेरिएबल्स में मल्टीपल डेटा स्टोर करते हैं वी यूजुअली यूज दिस वे. बट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में ऐसा कुछ होता नहीं है. यूजुअली यू जस्ट गो विद दिस थिंग, सिंगल लाइन सिंगल वेरिएबल डिक्लेयर करते हो. बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे. ऐसा कुछ गलत नहीं है. ओके, इसमें भी मैंने प्रिंट ए तो क्या आएगा? 10 आ गया. डेटा उस वेरिएबल में जाएगा. क्लियर है हाउ टू डिक्लेयर मल्टीपल वेरिएबल एंड मल्टीपल डेटा? लेट्स सी, प्रिंट बी करते हैं. 20 आना चाहिए. राइट, सी 10 एंड 20 आ गया. परफेक्ट. तुम लोग में से किसी को जावा सी प्लस प्लस का आइडिया है? कभी किया है? नो सर. ऐसा उस डिटेल में ज़्यादा जाऊँगा नहीं. नो सर. बट ठीक है, में सी प्लस जिन्होंने भी किया है, ठीक है, जिन्होंने भी किया है उनको पता रहेगा. जावा प्लस प्लस में वेरिएबल डिक्लेयर करना इतना डायरेक्ट नहीं होता है. तुम्हें पहले बताना पड़ता है इंट, मतलब वेरिएबल का टाइप पहले बताना पड़ता है, फिर उसमें डालना पड़ता है अगेन वो कॉमा सेमीकोलन वो सब. बट पाइथन इज वेरी इजी. सिंपली थोड़ा बहुत ही बाकी कुछ है. राइट, इसका हम टाइप भी देख लेते हैं. ओके, क्लास इंट और चलो, तो आई गेस दिस वन इज फॉर एवरीवन. सभी को ये समझ गया. ओके, इंटेंशन बात कवर करेंगे. ठीक है, स्टेटमेंट्स. नॉर्मली लेट्स अंडरस्टैंड द टॉपिक स्टेटमेंट्स. ओके, अभी तुम लोग को ये कोड सेल देना तो आ गया. लेट मी टेल यू व्हाट इज टेक्स्ट. इसमें तो नॉर्मल टेक्स्ट लिख सकते हो.
तो ये ऐसे स्टोर हो जाएगा. Perfect. It is different from a text, I mean cell, code cell. It is just normally used to store the heading या topic या कुछ ऐसा notes लिखने के लिए use होता है text format. Okay. ठीक है. Now coming to statements. Statement क्या होता है? In Python, it is not a very tough topic. First topic नहीं है. Statement is a line of code performs an action. Python is a high level language, so most statements are simple and easy to understand. मतलब सिंपली ये जो हम लाइन लिख रहे हैं, जो लाइन नंबर 3 है, दिस इज अ स्टेटमेंट, लाइन नंबर 2 इज अ स्टेटमेंट, लाइन नंबर 1 इज आल्सो स्टेटमेंट. इट इज सिंपली अ लाइन ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स सम एक्शन. क्लियर? क्लियर है एवरीवन? यस सर. स्टेटमेंट फिर से समझा दीजिएगा. हाँ, स्टेटमेंट, पाइथन में स्टेटमेंट वर्ड का मतलब क्या है? स्टेटमेंट मतलब एक सिंपल लाइन ऑफ कोड है, मतलब एक कोड का एक सिंपल सा लाइन जो कुछ एक्शन परफॉर्म करेगा. अभी हमने इधर देखो बहुत सारे लाइंस ऑफ कोड लिखे हैं, तो लाइन नंबर 1 कैन ऑल्सो बी अ स्टेटमेंट, लाइन नंबर 2 इज ऑल्सो अ स्टेटमेंट, 3 भी स्टेटमेंट है. तो एनी लाइन, पाइथन में कोई भी एक लाइन जहाँ पे लिखा है एंड वो कुछ एक्शन परफॉर्म करेगा, दैट इज अ स्टेटमेंट. राइट? अभी लाइन नंबर 4, ये एक लाइन ऑफ कोड है, ये एक एक्शन भी परफॉर्म कर रहा है. एक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है? ये 10 जो डेटा है 10 उसको सम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहा है. तो दिस इज द एक्शन दिस line is performing. What is this line doing? This is printing the data stored in particular variable. So this is the action performed by सर जैसे कि 5 में कोई लाइन दिया हो तो स्टेटमेंट नहीं हुआ. नहीं, वो स्टेटमेंट नहीं हुआ. That should be performing some action. सर लाइक पाइथन इंटरप्रेटर. इंटरप्रेटर का जॉब एक्चुअली अलग है, बट इंटरप्रेटर भी एक एक स्टेटमेंट को ही एग्जीक्यूट करता है. ओके सर. कर लो. तो सिंपल, ज़्यादा डीप कॉम्प्लेक्सिटी में मत जाओ इतना. अगर कुछ डाउट्स है तो यू कैन लाइक अभी जैसे पूछा है वैसे पूछ सकते हो, बट बहुत ज़्यादा दिमाग मत खर्चा करो. इतना कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ ये नहीं है, सिंपल है. लाइन ऑफ कोड है जो कुछ एक्शन परफॉर्म करता है. क्लियर है? स्टेटमेंट्स का अलग अलग टाइप होते हैं. एक होता है असाइनमेंट स्टेटमेंट. असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होता है? जब हम किसी वेरिएबल में कुछ करते हैं, मतलब उस पर्टिकुलर वेरिएबल में डेटा जब स्टोर करते हैं, उसको बोलते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट. जैसे कि हमने ऊपर अभी इतना सारा लिखा था, a इज इक्वल टू अगेन लेट्स से 4. तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करें तो हो गया. ओके, समझा? इस टाइप के जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट्स. सिंपल. क्वेश्चन, व्हाट इफ आई डू ठीक है. तो असाइनमेंट स्टेटमेंट समझा, एक ऐसा लाइन ऑफ कोड जो असाइन करता है, एक वेरिएबल में कोई डेटा असाइन करता है, उसको हम बोलते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट. सिंपल. कमिंग टू एक्सप्रेशन स्टेटमेंट. क्या होता है? एनी ठीक है, नो इश्यूज, आई विल टेक फॉरवर्ड. एक्सप्रेशन स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है that is made by the combination of values and operators. Okay, let me tell you. Values क्या होता है, operators क्या होता है. 3 plus 5. इसमें assign, okay, I will just make it more easier. This is an expression statement जहाँ पे 3 एक वैल्यू है, प्लस साइन जो है वो ऑपरेटर है, दैट इज अ अरिथमेटिक ऑपरेटर. जब हम ऑपरेटर डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कितने टाइप का ऑपरेटर्स वगैरह होता है. अगेन 5 इज अ वैल्यू. सो यू कैन सी एक्सप्रेशन स्टेटमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यू एंड ऑपरेटर.
सिंपल। अब इसको मैं रन करूं, सी 8 आ गया। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये, अंडरस्टूड? यस सर। ओके गाइस, आई विल से कि साथ ही साथ तुम लोग कोड भी कर लो या फिर नोट्स बना रहे रहोगे तो नोट्स बना लो, तो ज़्यादा इजी रहेगा जब तुम रिवाइज वगैरह कर रहे रहोगे। अभी ये देख के लगेगा इट इज़ वेरी इजी वगैरह, बट जब यस एक रिवीजन करोगे तब वो टाइम पे तुम्हें भी इजी लगे। रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगे। रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, बट आई विल सजेस्ट कि साथ ही साथ नोट्स बनाओगे तो तुम्हें अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग बना लोगे तो अच्छा रहेगा। रिकॉर्डेड मिल जाएंगे तुम्हें यूट्यूब पे, गूगल पे भी, काफ़ी जगह तुम्हें इस सब के कंटेंट्स मिल जाएंगे। ओके क्लियर है? एक्सप्रेशन स्टेटमेंट क्या होता है? लेट्स से वन मोर एग्जांपल, 6 स्टार 4 24, right? Let's store this in something. Let's store this in something, but this is giving an error. Nice. Why it is giving an error? It's not giving an error. You can see ये indentation error बोलते हैं इसको, unexpected indent, मतलब ये space यहाँ पे expected नहीं था। ठीक है, I'll get into detail later. तो यहाँ पे normally see, मतलब मैं ये जो एक्सप्रेशन का वैल्यू है उसको मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहा हूँ, बाद में उस वेरिएबल को मैं प्रिंट कर, बेसिक है। ओके, so this is also one of the statement. Now coming to one more statement that is also known as control flow statement. Anyone knows control flow statement क्या होता है? नो सर। See the word itself explains control flow statement, मतलब वो एक flow को control कर रहा है। इसमें basically if else condition होते हैं। if else मतलब अगर ये कंडीशन सही है तो ये करो, नहीं तो वो करो, सिंपल, राइट? ये एक टाइप का कुछ कोड हो गया, या फिर फॉर लूप्स आते हैं, ऐसा मल्टीपल लूपिंग स्टेटमेंट आता है, मतलब जब तक ये चीज चल रही है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट करो। इस टाइप की चीजों को हम बोलते हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। आई शो इफ लेट्स सपोज, एक तो ये है ना, ये बहुत जल्दी सजेस्ट करता है, एज इज इक्वल टू लेट्स सपोज 20, इफ एज इज ग्रेटर देन 18, तो क्या करना है? अगर एज 18 से बड़ा है तो हम बता रहे यू आर एलिजिबल टू वोट। ये को समझ के मेरे को क्या टाइप करना है, ठीक है? अभी मैंने एक एज नाम के वेरिएबल में कोई डेटा स्टोर किया, राइट, 20, फिर मैंने कंडीशन दिया यूजिंग इफ कीवर्ड। से इफ का कलर अलग है तुम देखोगे तो वेरिएबल से, राइट? तो इफ एज इज ग्रेटर देन 18, मतलब अगर एज 18 से बड़ा है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट करो। सी, कर दिया है ना? और तुम यहाँ पे देख सकते हो ये जो प्रिंट लिखा है ये एग्जैक्ट इफ के नीचे नहीं लिखा है, ये थोड़ा स्पेस दे के लिखा है, एंड ये स्पेस मैंने नहीं दिया, ये ऑटोमेटिक आया है। लेट मी शो यू अगेन। सी, जैसे मैं ये डबल कॉलन डालूंगा, जैसे मैं एंटर करता हूँ ये ऑटोमेटिकली कुछ स्पेस आगे आ जाता है। मतलब ये इसने क्या दिया पता है? ये स्पेस का मतलब ही इंडेंट होता है। दैट मीन्स ये स्पेस मतलब ये है कि इसके अंदर ये जो भी कोड लिखा है वो इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर आता है। Shall I repeat again? यस सर। या तो हम एक कंडीशन देते हैं, एक कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट लिखते हैं, इट शुड ऑलवेज बी लाइक दिस, ये कोलन वाला सिंबल आएगा, उसके बाद जब हम एंटर दबाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली कुछ स्पेस आगे जाएगा। इसका मतलब ये है इसके अंदर जो भी कोड लिखेंगे ये कोड इसके अंदर आता है। मतलब अगर ये स्टेटमेंट जो थर्ड नंबर लाइन में लिखा है अगर वो ट्रू रहा तो उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट करना है, नहीं तो उसके अंदर नहीं जाना है, सिंपल। ओके,
Let me show you one more thing. ठीक है, लेट्स सपोज मैंने 20 डाला, दैट मीन्स इट इज लाइक एज 18 से बड़ा है, राइट? ये कंडीशन ट्रू हो गई ना? यस और नो? यस सर। यस सर। कंडीशन ट्रू हो गया, दैट मीन्स जब ये कंडीशन ट्रू होता है तो हम उसके अंदर जाएंगे, उस पर्टिकुलर लाइन के अंदर, एंड उसके अंदर क्या लिखा है कि हमें ये स्टेटमेंट प्रिंट करना है, यू आर एलिजिबल टू वोट। बट अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है, लेट्स सपोज 10, राइट? ये कंडीशन फॉल्स हो गया, तो जब ये कंडीशन फॉल्स होगा तो वो चेक करेगा कि इसके अंदर तो जाना नहीं है बिकॉज कंडीशन फॉल्स हो गया, तो इसके अलावा कुछ कंडीशन है क्या? अगर ये नहीं तो ये, इफ एल्स का मतलब यू आर माइनर टू वोट, बिकॉज ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो इट विल चेक इफ कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, लेट्स चेक एल्स कंडीशन, राइट? तो उसने ये कंडीशन चेक किया एंड बता दिया ओके यू आर माइनर टू वोट। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। मैं तुम्हें असाइनमेंट्स वगैरह दूंगा जब हम इफ एल्स करेंगे, तो तुम्हें और ज़्यादा बेटर क्लियरिटी आएगा कि इफ एल्स क्या होता है, कैसे होता है। एंड माई ओनली रिक्वेस्ट फ्रॉम एवरी वन विल बी गाइज एवरीडे प्रैक्टिस करो इसको, बिकॉज प्रैक्टिस नहीं करोगे 2-3 दिन छूट जाएगा तो अगेन तुम्हें लगेगा कि यार वापस स्टार्टिंग से स्टार्ट, ये लूप चलता रहता है। टू एनी ऑफ द इंजीनियर्स, इवन इफ तुम जब इंजीनियर भी बन जाओगे, ऑफिस काम करोगे, तब भी इवन काफ़ी सीनियर इंजीनियर्स जो मैं जानता हूँ, दे इवन से अगर हम सॉरी एक हफ्ता नहीं, 15 महीना, सॉरी 15 दिन या फिर 1 महीना अगर हम नहीं कोड करते ना, हमको खुद को डूइंग राइट। सो कीप से राइट, नहीं बट कि को ना मत, इसको प्रैक्टिस करते रहो, तुम्हें इजीली समझ में आने लगेगा। ओके सर। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। बाकी रिटर्न स्टेटमेंट एक होता है, देन वी हैव फंक्शन डेफिनेशन, विल गेट दैट इन डिटेल जब हम वो टॉपिक करेंगे। फंक्शन जब करेंगे तो मैं बताऊंगा फंक्शन कैसे डिक्लेयर करते हैं क्या नहीं, एंड अगेन रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है, वो फिर फंक्शन में कवर हो जाएगा। ओके, तो अभी के लिए ये समझो कि एक कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट वो होता है जो एक फ्लो को कंट्रोल करता है, राइट? यहाँ पे चीज़ें फ्लो हो रही है ना एक पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर, पहला एज में एक वेरिएबल आई मीन डेटा स्टोर हो रहा है, उसके बाद उसको चेक किया जा रहा है ये ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट करेंगे, फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट करेंगे। तो दिस इज अ कंप्लीट फ्लो, राइट? यस सर। यस सर। परफेक्ट, परफेक्ट। तो नेक्स्ट, उससे पहले कंफर्म नहीं, अभी तक मैंने जो भी पढ़ा सभी को समझा? Yes, सर। yes. यस सर। नो डाउट्स, नो प्रॉब्लम्स अभी तक? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है, आज के लिए थोड़ा और 2-3 टॉपिक है, कर लेंगे एंड यू गाइस कैन डू इट। ओके, फर्स्ट डे में बहुत Sir, ज़्यादा please repeat the explanation statement. कौन सा एक्सप्रेशन स्टेटमेंट? ओके, Yes, sir. एक्सप्रेशन स्टेटमेंट, और जस्ट लुक इनटू द वर्ड एंड करो एक्सप्रेशन असाइनमेंट ये सब, जो इस वर्ड का मतलब क्या हो, तब तुम्हें वो इजीली समझेगा। एक्सप्रेशन स्टेटमेंट वो होता है सी जिसमें एक वैल्यू भी होता है, ऑपरेटर भी होता है। 3 इज वैल्यू एंड प्लस साइन इज द ऑपरेटर। सिमिलरली यहाँ पे इज द वैल्यू एंड मल्टीप्लिकेशन साइन इज द ऑपरेटर, राइट? ऑल्सो 4 इज अ वैल्यू। So a statement which is a combination of value and operator is known as expression statement. Expression word ही क्यों use किया? Because it is a mathematical expression, right? Perfect. Yes, sir. एंड यहाँ पे तुम देखोगे हम लोग ने असाइनमेंट स्टेटमेंट भी यूज किया है, बिकॉज जो ये एक्सप्रेशन का वैल्यू है हम उसको ए नाम के वेरिएबल के अंदर असाइन कर रहे हैं, राइट? ठीक है, स्पेंडिंग मच टाइम आउट देयर। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट, लिटरल्स। लिटरल्स का मतलब क्या है?
Literals are the fixed value you assign to variable or use directly in your code. They represent constant data. अभी तक हम लोग ने जो सब देखा कि हम एक वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर कर रहे हैं, ये सब, वो जो डेटा, उसको एक अलग नाम भी है, उसको हम बोलते हैं लिटरल। जैसे हम ए को वेरिएबल बोल रहे हैं, तो वैसे 4 का मतलब है लिटरल। समझा? Let's suppose a is equal to 10. So here 10 is the literal. The data we pass to stored in the variable is basically known as literal. Okay? ये टर्म्स को समझ लो, बाकी इसका कुछ इतना हैवी नीड नहीं होता है। यूजुअली फ्रेशर रोल के लिए थोड़ा बहुत कोई पूछ लेता है, फिर एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं लिटरल का मीनिंग क्या है, या फिर आइडेंटिफाई द लिटरल वगैरह। ओके, क्लियर है ये? Perfect, perfect. Now coming to next thing, that is keywords. जैसे मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले, keywords are reserved word या फिर pre-defined words in Python that have special meaning and cannot be used as an identifier. अभी आइडेंटिफायर क्या होता है मैं बताऊंगा। मैंने ये चीजें एंडिंग के लिए क्यों रखी थी, आई विल आल्सो टेल यू, एंड तुम लोग को समझ भी जाए। या स्नेहा? लिटरल को कैसे बता देते ना? लिटरल आर नथिंग, जस्ट ये जो डेटा है उसको हम लिटरल बोलते हैं, और कुछ नहीं। जैसे अभी हम ऊपर भी देखेंगे, नेम इज इक्वल टू एलिस, हियर व्हाट, व्हिच वन इज लिटरल, बता सकते हो? equal to 4. आई मीन दिस वन। हाँ, ये वो तो यहाँ पे तो 4 इज अ लिटरल, बट इस वाले में एलिस परफेक्ट। तो जो डेटा हम पास कर रहे हैं, उस डेटा को मैं वर्ड डेटा यूज कर रहा हूँ, हम लिटरल भी बोल सकते हैं। अब मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि हम एक लिटरल पास कर रहे हैं उस वेरिएबल में, राइट? ठीक है। कीवर्ड्स क्या है? कीवर्ड्स एक कुछ स्पेशल वर्ड्स है जिनका पाइथन में ऑलरेडी कुछ मीनिंग डिफाइंड है, कि अगर हम ये वर्ड यूज करेंगे तो ये ऐसा ही चलेगा, राइट? उसको हम वेरिएबल में यूज नहीं कर सकते हैं, एज आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगा आइडेंटिफायर क्या है, डोंट गेट पैनिक, इतना कुछ टफ नहीं है। ओके, सम ऑफ द पाइथन कीवर्ड, जैसे कि एक इफ हो गया, जब हमने देखा, यू कैन सी द डिफरेंस आ जाता है ऑलरेडी। रिजर्व वर्ड्स का कुछ एक अलग रहता है। एल्स ये भी एक कीवर्ड है। फॉर, वाइल, ब्रेक, कंटिन्यू, देयर आर मेनी, these are some of the examples, right? Understood कीवर्ड क्या है? Yes. Now coming to identifier. The identifier क्या है बताता हूँ। Identifiers are names used to identify variables, functions, classes and other objects in Python. Let me simplify. जैसे अभी हमने देखा, इसको मैं बार बार डेटा बोल रहा था, राइट? एनी डेटा वी आर पासिंग, इस डेटा को हम लिटरल बोलते हैं। सिमिलरली ये जो चीज़ है वेरिएबल, इसको हम आइडेंटिफायर मानते हैं। मतलब आइडेंटिफायर जैसे बेस्ट एग्जांपल, कार एंड बाइक, दोनों व्हीकल, राइट? बोथ आर व्हीकल्स। साइकिल इज आल्सो व्हीकल, राइट? सर बाइक और कार डिफरेंस तो है, बट ये किसके अंडर आते हैं? ये दोनों व्हीकल कैटेगरी के अंडर आते व्हीकल्स के अंदर आते हैं सर। हैं। सिमिलरली बहुत आइडेंटिफायर होते हैं जिसमें वेरिएबल इज आल्सो वन ऑफ द आइडेंटिफायर, वो आइडेंटिफायर कैटेगरी में। ओके, अभी जैसे बताऊं, आइडेंटिफायर के एग्जांपल्स हैं वेरिएबल, फंक्शन, then we have
क्लासेस एंड सम अदर ऑब्जेक्ट्स। अभी ऑब्जेक्ट मैं नहीं लिखूंगा, मैं तो लिख लेता हूँ, बट यू गाइस विल अंडरस्टैंड जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है वो टाइम पे बताऊँ। ओके, ठीक है। सो दीज आर दी आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर का नाम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे वेरिएबल में हम लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं, राइट। ऑफ कोर्स कुछ रूल्स होगा, बट ए दे दिया, ए2 दे दिया, सम दे दिया, नेम दे दिया, ठीक। सेम फंक्शन भी जब हम नेम करते हैं, फंक्शन का भी एक नाम दिया जाता है, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल डेफ सम, तो ये मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया। ये जो सम देख रहे हो ना, दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन एंड ऑल्सो नोन एज आइडेंटिफायर। समझा? एक और बार रिपीट करूँ, आइडेंटिफायर। यस सर। आइडेंटिफायर वो कैटेगरी समझ लो, एक ऐसा कैटेगरी है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि वेरिएबल आता है, फंक्शन आता है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स आता है, राइट। अभी वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल ऐसा फिक्स तो नहीं होता है ना कि तुम्हें यही वर्ड यूज करना है वेरिएबल के लिए हमेशा। यू कैन यूज ए बी और वॉट एवर थिंग, जो चाहिए तुम वो नाम दे सकते हो, राइट। वेरिएबल में, फंक्शन में भी जो चाहिए तुम वो नाम दे सकते हो, राइट। जैसे यहाँ पे सम दे दिया मैंने, सम वन कर दिया। क्लासेस भी जब हम डिफाइन करेंगे, मतलब कोई भी चीज़ हम, या लेट्स सपोज एक कंटेनर बना रहे हैं या फिर कुछ भी एक चीज़ बना रहे हैं जिसको हम एक स्पेसिफिक नाम दे रहे हैं, तो वो चीज़ होता है आइडेंटिफायर। वो जो पर्टिकुलर, हाउ वुड आई से दिस थिंग टू यू गाइस, नेमिंग कन्वेंशन बोल लो, समथिंग, नॉट कन्वेंशन टू बी ऑनेस्ट। इतना टफ तो नहीं है यार, कैसे बताऊं तुम लोग को। कैटेगरी समझ लो यार, मतलब इतना कुछ ये डिटेल में जाने जैसी चीज़ है नहीं। लेट्स सपोज एनी वेरिएबल, एनी फंक्शन, एनी क्लासेस और एनी टाइप ऑफ थिंग जो हम नेम करते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ करने के लिए, राइट। लेट्स सपोज अगर मुझे ये फंक्शन को यूज़ करना है तो मुझे उसको नाम देना पड़ेगा, राइट। तो जब हम उस नाम दे रहे हैं, कोई भी चीज़ को बना रहे हैं नाम दे के स्पेसिफिक, तो उसको आइडेंटिफायर बोलते हैं। बस थिंग, तुम्हारे कॉलेज में आईडी कार्ड है? Yes, sir. यस सर। First year. राइट। तो तुम्हें आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है? तुम्हारे आईडी कार्ड के थ्रू, राइट। Yes, sir. यस सर। एग्जैक्टली। तो ये एक स्टूडेंट है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे? आईडी कार्ड के थ्रू। सिमिलरली Yes. अगर तुम्हारे कॉलेज में टीचर भी होंगी तो उनका भी शायद आईडी। तो अभी देखो, स्टूडेंट भी एक इंसान है, टीचर भी एक इंसान है, राइट। दोनों ह्यूमन कैटेगरी के अंदर आते हैं, बट दोनों में डिफरेंस तो है। Yes, sir. एग्जैक्ट ऐसे जैसे वेरिएबल फंक्शन आइडेंटिफायर कैटेगरी के अंदर आता है, बट दोनों का फंक्शन अलग है, एंड उसको हम आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं? बाय गिविंग सम नेम, राइट। स्टूडेंट का नाम कुछ और होगा, टीचर का नाम कुछ और होगा। क्लियर? यस सर। सिंपली आइडेंटिफायर। अभी इसका सिंटैक्स वगैरह भी होता है। अब तुम एक लाइन में जस्ट सपोज, अभी जो मैंने 3 एग्जांपल लिखे हैं, डेफ, सम एंड पैरेंथेसिस यूज किया है, ए इज इक्वल टू एन, क्लास इक्वल क्लास स्टूडेंट, ओके। अब ये चीज क्या है? ये है ना, राइट। क्या है? यहाँ पे एक वेरिएबल है एंड ये क्या है? ये क्लास है। बट ये मैं बता कैसे पा रहा हूँ कि यही फंक्शन है, यही क्लास, ये वेरिएबल है, राइट। उसका एक सिंटैक्स लिखो। अगर किसी भी वर्ड के आगे डेफ लिखकर ये ऐसा लिखा है तो वो मैं समझ जाऊंगा कि ये फंक्शन है। अगर स्टेटमेंट ऐसा लिखा गया तो मैं समझ जाऊंगा कि ये क्लास है, राइट। सिमिलरली अगर ऐसा लिखा है, मतलब एक पर्टिकुलर सिंटैक्स फॉलो किया है, तब मुझे समझ जाएगा कि हाँ ये वेरिएबल है, या फंक्शन है, ये क्लास है। तो आइडेंटिफायर्स का ये सब रूल्स होता है, टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर थिंग, अंडरस्टूड। एंड ऑल्सो वी यूज डिफरेंट नेमिंग्स
and a particular syntax is followed. Easy. And any doubts, let me know. एक और एग्जांपल मैं ले सकता हूँ, जैसे कि लेट सपोज जो क्रिकेट में जो बॉल यूज होता है, ओके, अब इंटरनेशनल क्रिकेट में सीजन बॉल यूज होता है, नॉर्मल गली क्रिकेट में यूज टेनिस बॉल, दोनों ही बॉल है, बट यू कैन अंडरस्टैंड भाई कि देख के बता सकते हो कि ये सीजन बॉल है या फिर ये टेनिस बॉल है, राइट? Yes, यू आइडेंटिफाई इट, सिंपल। इससे ज़्यादा कुछ टफ टॉपिक है नहीं है। तो अभी तक जो हमने किया सबको समझ में आया? Yes, sir. कोई Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन परफेक्टली सभी टॉपिक्स? Yes, sir. ठीक है। Rishabh, do we have the quiz link today? Like, can we cover a quiz today? Is he present, Rishabh? Yes, sir. Yeah. तो आज क्विज कवर कर सकते हैं? Yeah. Yeah. So fine. Okay, I am giving test link. We'll do one thing, Rishabh. Let them take this test after this thing, after the lecture. लिंक को बंद कर देना by 11:05. 11:05, 11 तक बंद कर देना, okay? After 10:30 they can give. Half an hour is more than enough, I guess, है ना? There are 10 questions. I think 15 minutes are enough. And it's a ठीक है, MCQ. but still, MCQ. ठीक है, let's give them 20 minutes, not an issue. So, okay, after 20 minutes you can just turn off the link. Share कर दो group पर. No, don't share it now. While we close it, we'll share that time. Okay. Okay. Yeah. So before closing of this meeting, let's revise what all things we did today. आज कुछ ज़्यादा इतना हम लोग ने डीप में गए भी नहीं है. We just went through कि what is programming, what is Python, क्या क्या चीज़ें की जा सकती है Python से, and every all other things. And later we encountered some issue with Rishabh's system, so I took over the lecture today. एंड हम लोग ने लेटर उसके बाद क्या किया, वेरिएबल्स क्या होता है समझा, डेटा क्या होता है, लिटरल्स क्या होता है, आइडेंटिफायर क्या होता है, इंडेंटेशन क्या होता है, स्टेटमेंट्स कितने टाइप के होते हैं, एंड देन लाइक दिस कीवर्ड्स वगैरह क्या होता है, राइट? तो अंडरस्टूड एवरीवन हाउ वी आर टेकिंग आउट दिस टाइप of the particular variable? Yes. Okay, fine. So if I ask anyone, so you can answer, right? Confident? yes, sir. Okay, let me see किसको उठाया जाए. Aryan Raj, you there? Yes, sir. Yeah, Aryan. Um, can you tell me what's the difference between int and float? What, sir? What is the difference between int and float? बता सकते हो? Yes, sir. Say. Wait, sir. Why to wait? सर इंट में होल नंबर्स टाइप का सर इंट में होल नंबर यूज कर सकते हैं और फ्लोट्स में डेसिमल नंबर यूज कर सकते हैं. होल नंबर का मतलब क्या है? सर होल नंबर मतलब 120 ये 0 वैसे. Okay, any number जिसमें decimal नहीं होता है, right? यस सर. Okay, that is whole number. Whole number starts with 0. ठीक है. और इसको पूछ सकते हैं
Sneha. Can you tell me like किस तरह से we should not declare a variable? What are the rules that we should avoid to declare a variable? We can't use numbers. Hmm? We can use square letters. Mm-hmm. Okay. We cannot use number at start. Be specific. Okay. We'll come to So, and Ranjit. also give a brief idea about the separator and specifier. We'll come to that tomorrow. Actually, I think this will be fine. Because the one question in the quiz is also so. Yeah, that is okay. It's not necessarily you have to cover all the topics. I mean, for the quiz aspects, Hmm. let them research as well. I was about to give that as an assignment. Okay. Okay. Fine. Yeah. Okay. Ranjit, I was about to ask you, right? Yes, sir. Yes. So, can you explain me if else? What you understood by if else? जो मैंने पढ़ाया. What you understood by that? Sir, question repeat, sir. Can you explain me the if else statement? This one. Statement, sir. Huh? Sir, statement. हाँ. Explain me that if else. ये जो दिख रहा है ना कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट. Yes, sir. तो वो if else. Sir, Hmm. condition of value. तो कंडीशन बता रहा है. वो कोड मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो कि वो कोड में क्या हो रहा है? जो सेल नंबर 35 है उसके कुछ लिखा है. तो वो पर्टिकुलर कोड में क्या हो रहा है? वो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट दे रहा है सर, जिसमें कि कंडीशन बता रहा है कि अगर हम उसमें जो वैल्यू लिए है वो अगर सही है तो प्रिंट करवाएगा, या अगर गलत है तो ये, नहीं तो वो, ऐसे सर. ओके. परफेक्ट. सही है. सर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे सर. दैट इज ओके. हाँ. मेरे को वही टेस्ट करना था क्योंकि एंड इट इज कम्प्लीटली फाइन. मैं समझता हूँ वो चीज़ें. आई एश्योर यू कि यू गाइस बी रिस्पॉन्सिव. कंडीशन बता रहा है सर. यस सर. Yeah, good one, Ranjit. Only thing is, guys, everyone are responsive. And जब मैं पूछूं तो if you guys are able to tell me if it is okay कि इंग्लिश में बताना ज़रूरी है, हिंदी में बताना ज़रूरी, ऐसा कुछ नहीं है. तुम एक्सप्लेन कर पाओगे तो चलेगा. And if we practice this thing daily, by the end of this training, you guys will be able to get this skill of explaining something. जब तुम कोई एक्सप्लेन कर पाते हो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट है जो तुम्हें स्टैंड आउट कराता है ड्यूरिंग एन इंटरव्यू प्रोसेस. इंटरव्यू में लोगों को ऐसा हाई-फाई इंग्लिश ज़्यादा सुनना नहीं होता है. दे वांट टू जस्ट लिसन कि जो तुम्हें आता है वो उन सामने समझा पा रही हो कि नहीं. राइट? वी विल प्रैक्टिस दिस थिंग डेली एंड आई एश्योर यू बाय एंड ऑफ 2 months of training you guys will be able to do it for everyone in here. Right? यस सर. Fine, fine. And I guess तो आज के सारे टॉपिक्स क्लियर. वी ऑल्सो डिडंट टच, ऐसा कुछ हार्ड टॉपिक हमने टच भी नहीं किया. ठीक है. तो एनीवन, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? नो सर. नो सर. ओके. सौरभ, अदर्स? और सर परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट. सो असाइनमेंट ले लो सो दैट यू गाइस विल आल्सो डूइंग समथिंग. कल लेक्चर में ज्वाइन करने से पहले यू शुड बी डूइंग दिस असाइनमेंट. ओके. असाइनमेंट नंबर 1 लिख लो.
Ready? Shall I say? Yes, sir. Okay. List down all the keywords in Python. Python में कितने keywords है उस वो list down करो. Okay, list down all the keywords in Python. Okay, done. Second assignment would be, what are the rules to be followed while naming a variable? What are the rules to be followed while naming a variable? ओके, यू हैव टू आल्सो राइट कि कौन से रूल्स मतलब अवॉइड करने चाहिए वो भी लिखना है, कौन से रूल्स फॉलो करने चाहिए, यू हैव टू टेल दैट. ओके, सो एक बार रिपीट कीजिएगा और टेल मी, आई मीन नोट डाउन द रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल. मतलब एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, राइट? वो रूल्स क्या होते हैं? ठीक है, एंड लास्ट वन, एक्सप्लोर अबाउट व्हाट इज स्पेसिफायर एंड सेपरेटर. ओके, कल ये तुम्हें एक्सप्लेन करना है स्पेसिफायर एंड सेपरेटर क्या होता है. ओके, सर क्वेश्चन रिपीट करिए ना आंसर. ओके, थर्ड वन या पहले के दो? सर थर्ड वन. थर्ड वन. ओके, सर ग्रुप में ही सेंड कर देते हैं. हाँ ठीक है, separator and then okay, okay fine, I'll do one thing, do this two things. बाकी separator and end क्या होता है वो थोड़ा एक्सप्लेन करना. स्पेसिफायर नहीं तो सेपरेटर and end. Okay, you can see, तो explore कि ये क्या होता है, and tomorrow we'll have a discussion over this. You guys will have to explain it. Okay, आज को ज़्यादा मैं असाइनमेंट नहीं दे रहा हूँ, बट दैट डजंट मीन कि आगे आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उसमें असाइनमेंट्स इतने ही ईजी होंगे या फिर ज़्यादा टफ नहीं रहेंगे. ऑफ कोर्स इट विल इंक्रीज टाइम टू टाइम, राइट? सर असाइनमेंट भेजना कब? कल लेक्चर में आने से पहले ट्राई टू डू इट बिफोर 3 PM. Can be 3 or take max to max by 5 PM. ओके सर. Suraj sir. हाँ ऋषभ, Can we take these assignment submission on the classroom? yeah, we can take it on Google Classroom. Guys, I'll just form a Google Classroom and I'll share the link. तो Google Classroom यूज़ किया पहले? यस सर. Yes, sir. किया है ना, ठीक है. यस सर. तो आइडिया है तुम लोग, तो गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लेना एंड वहाँ पे अपना असाइनमेंट शेयर कर देना. ओके, सबमिट कर देना. यस सर. परफेक्ट, ओके. ओके सर. चलेगा. ठीक है, तो फिर एनीवन अभी कुछ डाउट्स है? नहीं है, मैं वापस से पूछ रहा हूँ. नो सर. ठीक है, चलेगा. वेरी गुड. हाँ या शाम कुछ बोल रहे हो? असाइनमेंट किस पे बनाना है सबको? नॉर्मल तुम गूगल के डॉक बना, PDF बना दो, कुछ भी बना के तुम सबमिट कर सकते हो. या शिवम? सर इसका वीडियो मिल जाएगा अभी या फिर कल मिलेगा? ऋषभ, व्हेन वी कैन गेट द वीडियो? Right now. और सर हम सर वीकली कितना चलेगा? सॉरी, We will let you know after the discussion with our sir. एक सेकंड, क्या क्या पूछ रहे थे शाम में शिवम, कुछ आर्स को लेकर? Sir, Syam is asking like कि ये week में कितने दिन तक चलेगा? अच्छा हाँ, उसका I'll update you by tomorrow, yeah, and Okay, it sir. will daily 2 hours का रहेगा, 8:30 to 10:30, but week में कितना दिन रहेगा I'll update you tomorrow. Okay, ओके सर. fine, fine. So yes, so done for today. I mean पढ़ाई हो गई. Guys, session You कैसा guys लगा? can- थैंक यू सर.
बहुत ही सर अच्छा लगा सर। We will be doing this for the complete 2 months. So have a trust in us कि हम तुम्हें अच्छे से डिटेल बाय डिटेल पढ़ाएंगे एंड ऑल्सो डू या धर्मेंद्र जी सर। ये मतलब तुमने हैंड रेज किया ना, मुझे लगा कुछ पूछना है। यस सर। या बोलो ना। सर हम लोग मॉर्निंग क्लास हो सकता है क्या सर? नाइट में प्रॉब्लम होता है सर नाइट क्लास में। आई मीन यस सर okay, morning I'll have to fix my schedule then. ठीक है, like you guys can discuss and let me know because the demo में वही actually point था कि मॉर्निंग्स में तो बहुत सारे काम है। I mean see it's no point debating here, but मैं बोलूँगा तुम लोग का अनऑफिशियल ग्रुप वगैरह जो भी होगा वहाँ पे या फिर नॉर्मल जो अपना ग्रुप है वहाँ पे डिस्कस कर लो आपस में यस क्या सर। टाइमिंग रहेगा एंड जो मेजोरिटी आएगा फिर विल गो विद दैट। तब तक के लिए कंटिन्यू करते हैं, फिर जैसे ही जो मेजोरिटी एक्सेप्ट करेंगे विल शिफ्ट द टाइमिंग, नो इशू विद दैट। ओके यस सर। ठीक है, यू गाइस डिस्कस आउट दैट राइट। यस। ओके सर। The only point keeping it an evening is like कि दिन भर में you can just explore some new topic